नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी, बड़े दिनों के बाद आपको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। मैं था नहीं यहाँ पे, इसके लिए सबसे क्षमा चाहता हूँ। जी, बहुत लंबा वक्त, you are hardly not there for 3 or 4 days. 4 days I was not there, Yes. and that's the longest period I've ever had where I've not done a show. आप सब लोगों को माफ़ी, आप सब लोगों को फिलहाल प्रदीप जी और मेरी तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, वणकम, चाइनीज में निहाओ, जापानीज में कोनिचिवा। प्रदीप जी, Habari yako jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. wherever they speak Swahili and wherever they speak Bangla, there is a whole lot of agitation going on at Yes. the moment. Mamata Banerjee, of course, says that you are trying to politicize the entire rape issue. That's what she says, and she may not be wrong. I mean, why not? The BJP is in the opposition over there. They'll try and use every opportunity they have to attack Mamata Banerjee. But then if you notice, the agitation is concentrated and focused only on the city of Calcutta, where already the BJP has a huge presence. And they have won most of the seats over there, even in the assembly elections. That's Sir, another one. Yes. Yes, you were saying? No, ये तो normal है कि जहाँ पर कुछ होता है तो opposition is going to create. वहाँ BJP is creating problem in Kolkata. यहाँ पर MVA wanted to create problem. But then the MBA, if you notice, has been very matured. अगर आप देखें, बदलापुर में जो हुआ, उसको लेकर के बहुत कोई ज़्यादा agitation नहीं हुई है. Very frankly speaking. Here the judiciary came in, stepped in and said your band is unconstitutional. So you can't have a band. You can't have a band, and Sharad Pawar ji already says if the judiciary has said that, we will accept that verdict of the judiciary. And I agree totally with Sharad Pawar. But you know, nothing of that sort probably happened where Kolkata is concerned. No, in Calcutta, on the contrary, the judiciary has been saying very clearly you can't use so much of force and so on and so forth. And what is more, even the governor has said very, very clearly. What footage are we running, by the way? What is that footage? ये footage क्या है? कहाँ की है? ये कलकत्ता की है कि हमारे बदलापुर की है? कहाँ की है? I think Calcutta. Will somebody tell me, please? I don't think it is Calcutta. Calcutta, the police uniform is white. Uniform is different. ये बदलापुर है. Yes. हाँ, ये बदलापुर है. ये कलकत्ता नहीं है. कलकत्ता में पुलिस की जो Correct. यूनिफॉर्म है वो सफेद है. Safed. लेकिन मेरा ये कहना है कि either way, what has happened over there is terrible. And had it not been for the agitation and the initial agitation from the resident doctors and everybody else, I don't think the CBI would have come in. Very frankly. Sir, मुझे ये चीज़ मालूम है. Judiciary has to play a neutral on a balanced foot everywhere. It's Bombay High Court or Calcutta High Court or any courts. Now, if one court has said that band is unconstitutional, Yes. now why can't it apply in Calcutta? Let us be very fair about That's it. right. Political parties अपना politics करते रहेंगे. It should apply in Calcutta as Yes. well. So same rule should have been applied in Calcutta. Durust. But as it is politics. What we can do is. But So, there's one thing by the way, Rahul since Gandhi you- जो बार बार कह रहे हैं. hang on a minute. You can mention Rahul Gandhi again. One second. Let me get this off my chest. जो अभी आपने जुडिशरी की बात करी ना, आज दोबारा, this is the second time in I think 2 days, that the Supreme Court has actually said, even in the case of PMLA under Section 45, bail is the norm, jail is the exception. आज दोबारा कहा गया. कल वो के कविता को जो बेल मिली है, उसमें ये कहा गया है कि अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर को अगर आप मान लें, if the high court order by Justice Swarnakanta Sharma, if that becomes law, then no educated woman will ever get bail. That's what the Supreme Court has said. And today again they have said, you can't keep a person indefinitely in jail because you have not examined all the witnesses, because the case has not started. So it is, the judiciary I think has woken up now to the fact that there is a lot of injustice being done all over the place. आप राहुल गांधी के बारे में कुछ कह रहे हैं, बोलिए. This strengthens Rahul Gandhi's claim जो बार बार कह रहे हैं कि there is dictatorship, जो freedom है वो उसको कर्ब किया है, संविधान खतरे में है. तो ये जो बार बार एक एक चीज opposition is being targeted, तो क्या ये it gets justified? एक के बाद एक जो incidences हो रहे हैं, we find everywhere. Now Supreme Court भले has taken a right step in the right direction after like quite some time. पहले भी जब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि judiciary is being intimidated. Now before the 2024 elections, the general elections, we actually felt like that. There was a pressure on the judiciary. But now the judiciary seems to be relieving itself from the pressure because the mandate is very clear. Mandate is Prime Minister Modi, you are the most accepted leader, but your totalitarian politics has been curbed.
they have curbed your- लेकिन प्रदीप जी यहाँ पर मैं एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। पिछली बार जो आसिफ फारूकी साहब आज भी होंगे हमारे साथ, पिछली बार जो उन्होंने कहा था कि बलात्कार यानी रेप ऐसी चीज़ है जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज को यूनाइटेड रहना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए, सब पार्टीज को, बिकॉज बेटियां हर एक के घर में हैं सर। यू कांट डू दिस। माई पॉइंट इज यू कांट प्ले पॉलिटिक्स ऑन रेप, आप नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप सीबीआई को अपना काम करने दीजिए, बाकी हर चीज़ को अपना काम करने दीजिए। आज की तारीख में लुक एट दिस वे, द जेंटलमैन हु हैज बीन अरेस्टेड, दैट रॉय व्हाटएवर हिज नेम इज, जो पहले दिन जो Such arrest a- हुआ है, yes, yes. उसको अरेस्ट किया कलकत्ता की पुलिस ने। जो आरजे कार हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल है उसका तबादला किया गया आज की तारीख में, उसको और फिर उसको नौकरी दे दी गई, और आज की तारीख में आईएमए ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उसकी मेंबरशिप को खारिज कर दिया है। ठीक है साहब, ऑफ कोर्स ही विल गो टू द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ही विल अपील एटसेट्रा। But he's, I think, probably under arrest also. CBI has filed a sir, case of criminal मेरा misappropriation. सर मेरा ये कहना है कि सीबीआई अभी अपना काम कर रही है। सीबीआई इज नॉट अंडर ममता बनर्जी। तो आज की तारीख में इतने ज़्यादा एजिटेशन करने की, लाइक फॉर एग्जांपल कल एजिटेशन हुई, आज हुई, और कल एक बार फिर बीजेपी ने बंद बुलाया, वह काहे के लिए? इट इज़ द सीबीआई विच इज इन्वेस्टिगेटिंग। अगर या तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा, सीबीआई की तरफ से तो कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि ममता बनर्जी की सरकार ने हमें काम नहीं करने दिया गया, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। सो देन व्हाई द एजिटेशन, व्हाट फॉर? आखिरकार प्रदीप जी, वो कहते हैं बेटियां सबकी सांझी होती हैं, बेटियां सबकी एक होती हैं। किसी बेटी के साथ भी अगर कोई अश्लील घटना हुई है तो पूरे देश को शर्मसार होना पड़ता है उसके लिए। तो मेरा ये कहना है कि वी शुड ऑल हैव अ मैच्योर्ड व्यू। आफ्टर ऑल प्रदीप जी, इट्स बीन 77 years सिंस वी गॉट इंडिपेंडेंस। 77 साल हो गए सर, 78वें साल में आ गए हम लोग। We need to be more matured when dealing with such cases. We should not use them for political gain. That's my view anyway. Let's go across to our friends. We have Mr. Lakshman Saji from the BJP and we have Asif Farooqi Saab from the Congress. Saji Saab, namaskar. नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी, जय वंदे शिवाजी। मातरम। जय भवानी, जय शिवाजी। आसिफ फारूकी साहब, जय हिंद, कैसे हैं सर? जय हिंद, बहुत अच्छे है सर। अरे आई लव दैट पेंटिंग। वो जो पीछे राहुल गांधी जी की जो पेंटिंग है यार, आय मजा आता है देख के। कौन है आर्टिस्ट यार, बताओ ना हमें। थैंक यू सर आर्टिस्ट कौन है? एक दिन आता हूँ मैं आपके पास। लेकिन आर्टिस्ट कौन है? आर्टिस्ट Cigarette, top cigarette है, बताएंगे नहीं टॉप सीक्रेट नहीं है सर। वो बैंड स्टैंड पे एक आर्टिस्ट रोजाना मैं वॉक करने जाऊँ तो बनाते रहता था, तो ला के मैंने बनाया उससे। बहुत ब्यूटीफुल है सर। हाय हाय हाय, मजा आ गया, एब्सोल्युटली मजा आ गया। द आइडिया वाज नॉट टू मेक राहुल गांधी पोस्टर, द आइडिया वाज टू गिव some work to that artist. He was very Fantastic. Fantastic. लवली। तो आसिफ फारूकी साहब, सबसे पहले आपसे, क्योंकि पिछली मरतबा जब आपने आए थे, आपने एक बात, बहुत खूबसूरत बात आपने कही थी। आपने कहा था कि यार देखो, जहां तक बलात्कार का सवाल है, कहीं पर भी कोई भी रेप होता है तो पूरा देश शर्मसार होता है उससे। सीधी सादी बात है, सबको चोट लगती है। बेटियां जो होती हैं सबकी सांझी होती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पंजाबी में कहावत है, कुड़ियां सब दियां सांझियां। ये होता है कि किसी गांव के अंदर किसी लड़की के साथ अगर किसी ने दुर्व्यवहार किया है या किसी ने छेड़छाड़ करी है तो उसमें पूरे गांव की बेइज्जती है। इसी तरीके से पूरे देश की बेइज्जती है। तो सर, अभी ये जो कलकत्ता के अंदर जो अभी एजिटेशन चल रही है, आपको क्या लगता है ये चलनी चाहिए? अभी तो सीबीआई देख रही है ना केस को। आसिफ फारूकी साहब, मुझको फिर नहीं समझ में आ रहा है कि बीजेपी क्यों उसको पॉलिटिक्स कर रही है। इससे पहले देखिए, पूरे देश में अपोजिशन ने एजिटेशन करने की कोशिश की और भारत बंद करने की कोशिश की और कोर्ट से ऑर्डर आया, हमने कोर्ट का सम्मान किया। लेकिन वहीं सेम केस के अंदर कलकत्ता में एक PIL फाइल किया गया कि भाई वो कलकत्ता में बीजेपी ने कॉल किया है और मेरे ख्याल से इसमें पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, और इसको कोर्ट के ज़रिए हमने बंद कराने की कोशिश की कि भाई इसको वो कॉल ऑफ करेंगे, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। तो मुझको नहीं समझ में आ रहा है कि ये दोहरा रंग क्यों है ऐसा। इसमें कहीं ना कहीं कोर्ट को भी सोचना चाहिए। आई डोंट नो, मेरा पूरा बहुत ज़्यादा इस पर स्टडी नहीं है, और एक बार फिर वही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई पार्टी हो, सबको मिलके इस किस्म की जो घटना होती है वो साथ में रह के काम करना चाहिए, ना कि अलग। और इसमें मैं बहुत क्लियर कर दूं अपने दर्शकों के लिए
कि राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दी थी कोलकाता आरजे कार हॉस्पिटल के रेप केस को लेकर के, ममता बनर्जी जी उससे बहुत बिगड़ गई थी और राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने बहुत बुरी तरह अटैक किया, जहां तक मुझे याद है। बट राहुल गांधी स्टक टू हिज गन, ही सेड कि यार जो मर्जी हो, अगर मेरी खुद की भी सरकार हो, अगर वहां पर कोई रेप हुआ तो गलत बात है। सर लक्ष्मण साहू जी साहब आप बताएं सर, डोंट यू थिंक इट इज टाइम वी मस्ट ऑल सिट टुगेदर, वी विल गेट रिड ऑफ दिस सब्जेक्ट अभी आपकी स्टेटमेंट के बाद, एंड वी विल कम ऑन टू आवर रियल सब्जेक्ट विच इज जो एक जम्मू एंड कश्मीर है, और उसके अलावा जो इतने बैंक अकाउंट्स खोले हैं विच इज अ ह्यूज अचीवमेंट बाय द वे फॉर इंडिया, 53 करोड़ के करीब जो जनधन अकाउंट खोले गए हैं वगैरह वगैरह, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन लक्ष्मण साहू जी साहब आपको लगता नहीं है कि आप इसको रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है ना सर लक्ष्मण साहू जी साहब? अब ऐसी घटना होती है जैसा आपने बताया, साहब ने बताया, सबके लिए शर्मनाक बात होती है। दुरुस्त बात है। इसमें कोई राजनीति की बात होती ही नहीं है, लेकिन घटना जिस तरीके से होती है ये कोई पहली घटना नहीं है। कश्मीर में इससे पहले घटना हुई, केरल में हुई, बंगाल में हुई, जिस तरीके से, और अभी बदलापुर में हुई, अभी बदलापुर में भी हुई, जिस तरीके से बदलापुर में हुई, रायपुर में जितने आसानी से हमारे जो प्रवक्ता है, जो सामने जिस तरीके से बात कर रहे हैं, स्टेट जो है ये बीजेपी के है और फलाने आजम साहब आप लक्ष्मण साहू जी साहब को बोलने पड़े हुए हैं सर। सब रोकथाम क्या उपाय बताइए? साहब को पूरा होने तो फिर मैं बोलता हूँ। नहीं, फारूकी साहब आप लक्ष्मण साहू जी साहब को बोलने बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ बीजेपी और कांग्रेस करके जी, कोई बात। इंसानियत के लिए बात करने के लिए तैयार हूँ, अदरवाइज मैं एज अ कांग्रेस प्रवक्ता या बीजेपी प्रवक्ता इस तरीके से मैं इस इश्यू के ऊपर बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ सर। सर इसमें बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, मैंने लक्ष्मण साहू जी साहब से ये पूछा है क्योंकि इनके बीजेपी स्टेट में भी रेप हो रहा है, तो क्या मैं झगड़ा करूं सर इसके ऊपर? आपको करने की जरूरत नहीं है सर, आपके लिए झगड़ा मैं करूंगा। आसिफ फारूकी साहब आपके लिए झगड़ा मैं करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। लक्ष्मण साहू जी साहब अब आप बताएं, क्या कलकत्ता में अब आगे डेमोन्स्ट्रेशन करने की जरूरत है? बोलिए साहब। ये जो प्रवक्ता होते हैं ना, पहले वो आपने उनके साथ बात किया, उन्होंने आपके साथ बात किया, मैं बीच में कुछ भी नहीं बोला। जब मेरी बात शुरू हुई, आधी बात सुनी भी नहीं, उन्होंने क्यों चर्चा बीच में छोड़ दी? नहीं, लेकिन हमारा बोलिए सर, बोलिए। नहीं, ये कौन सा तरीका है? इसमें हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। नहीं, पॉलिटिक्स जो बात कर रहे हैं बीच में, पॉलिटिक्स है ना, जो सामने वाला आदमी क्या बोल रहा है वो बोलने से आसिफ भाई सुनिए, एक बार सुनिए फिर आप बोलिए, एक बार सुनिए क्या बोलना चाहते हैं, उसके बाद बिंदास बोलिए आप। मेरी बात भी अधूरी हुई, बात भी नहीं पूरी की, हाँ फिर भी वो बोलिए साहब अब आप बोलिए, यू हैव द फ्लोर, बोलिए। ऐसी घटनाएं जब होती है ये शर्मनाक बात होती है जी। इससे पहले ऐसी जब घटनाएं हुई है, जब उसके लिए जिन्होंने आवाज लगाने चाहिए थे उन्होंने आवाज नहीं लगाई है। आज महाराष्ट्र में जो जैसे आपने ये बात निकाली बंगाल की, तो आपने बदलापुर की भी बात निकाली जी। बदलापुर के बारे में जो बात हुई है, पूरी सरकार क्या रवैया क्या है, पूरे एजेंसियों का रवैया क्या है, ये मालूमात होते हुए भी जिस तरीके से विपक्षी दल में कांग्रेस यहां कर रही है, शिवसेना कर रही है, शरद पवार कर रही है, सुप्रिया सुले कर रही है, वो जिस तरीके से बातें कर रही है, उन्होंने ऐसी बातें कभी बंगाल के लिए ऐसी बातें नहीं कभी की, बांग्लादेश के बारे में नहीं किया, जम्मू कश्मीर में जो हुआ था उसके बारे में नहीं किया, उधर केरला में जो हुआ उसके लिए ऐसी बातें नहीं की। जो शर्मसार बातें होती है, शर्मनाक बातें होती है, उसके लिए एक ही दिल होना चाहिए, एक ही दिमाग होना चाहिए। पार्टी किसके दिमाग में है, सत्ता किसके दिमाग में है, विपक्षी दल का रवैया किसके दिमाग में है, ये जरा सोचना पड़ेगा। अभी हमको किस दिशा से जाना है, किस दिशा से जा रहे हैं, किस तरीके से हम एजेंसियों को पार्ट बना रहे हैं, जो माहौल जो बना रहे हैं, ये कोई अच्छा माहौल बना रहे हैं क्या विपक्षी दल? जिस तरीके से घटना होती है, सामने कैसा जाता है, जहां की सरकार कोई आरोपी को बचा नहीं रही है। बंगाल सरकार के बारे में आक्षेप क्यों आया है? उनको बचाने का जब रवैया अपनाया गया, उसके बारे में फिर चर्चा होने लगी। ये सोचना, हर सरकार का रवैया अलग है, हर आदमी का रवैया अलग है, हर दल का रवैया अलग है। रेप के लिए रवैया एक ही होना चाहिए था। सीबीआई क्यों लगानी पड़ी बंगाल में? गवर्नमेंट किसका? अगर हमारा गवर्नमेंट होता और सीबीआई की जरूरत पड़ती तो बात अलग थी।
तो ये बातें इस तरीके से होगी जिस तरीके से हम सामना करते हैं, जिस तरीके से उस घटना को हम देखते हैं। इसी घटना, कोई भी आरोपी का समर्थन, कोई भी घटना का समर्थन, यह हमारा दल, हमारी पार्टी, हमारी सरकार कभी करती नहीं है। राइट। साहू साहब, कांग्रेस राहुल गांधी जी का यही आरोप है कि मोदी काल में, मोदी जी के काल में, उनको विनाश काल बोलते हैं, विनाश काल में 86 रेप्स पर डे राहुल गांधी जी आंकड़ा निकाला राहुल गांधी जी ने। ये इसमें कितने क्राइम्स अगेंस्ट वुमन, क्या साहू साहब आप कंट्रोल नहीं कर पाए? साहू साहब बोलिए। सर नहीं साहब, बात ऐसी है, फिर वही बात होती है, ये घटना होती है, ये दल के लिए गिनती नहीं होती है। राहुल गांधी जी को अभी के 10 साल मालूम है, पिछले 60 साल उन्होंने कभी स्टडी नहीं किया है भारत का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 साल में योजना इसलिए लानी पड़ी हमको कि महिलाओं के लिए क्या क्या समस्याएं थी, उसके लिए सब उभर कर आ गई। रेप के आंकड़े या महिलाओं के अत्याचार के आंकड़े हर साल के प्रकाशित होते हैं। हर स्टेट में कितना रेट है क्राइम का, हर पूरे भारत भर का कितना है। यह कोई स्पर्धा लगाने वाली बात नहीं है, पहले कम था अभी ज्यादा है, अभी कम है पहले ज्यादा है। यह शर्मनाक की बात है और इसके लिए जो करना चाहिए, मोदी सरकार कटिबद्ध है। हमारी सरकार जितनी कड़ा रुख अपनाती है और जितना आरोपी की बख्शा नहीं जाता, यह हमारे सरकार में हो रहा है। इससे पहले ऐसे हुआ नहीं है। अगर हम गिनती करने जाए हर स्टेट का अगर आंकड़ा निकल जाएंगे तो जिस तरीके से केस दाखिल हो जाती है, जिस तरीके से आरोपी को शिक्षा हो जाती है, उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे गुंडा लोगों ने जो कानून हाथ में लेकर जो काम किए, योगी जी ने वहां कैसा रुख अपनाया है। योगी जी ने जो कड़ा रुख अपनाया, वैसा कड़ा रुख अगर बंगाल में अपनाते तो सीबीआई की जरूरत नहीं पड़ती थी। सर जहां तक यूपी का सवाल है, आपने उत्तर प्रदेश की बात की, हिस्ट्री का लक्ष्मण उन्होंने साहब, सरकारों का कामकाज देखना चाहिए था। आई एग्री विद यू, बिल्कुल दुरुस्त बात है। 50 साल तो सर सरकार हाथरस में देश को इस समस्या का सामना करना पड़ता है, थोड़ा अपने गरिमा में उसमें झांक कर देखना चाहिए। तो लक्ष्मण साहू साहब, हाथरस में, उन्नाव में और बनारस में इतनी देर क्यों लगी, ये भी बता दें सर। हाथरस के रेप केस में बॉडी को जला दिया गया मिट्टी का तेल डाल के रात के 2 बजे, क्योंकि वो लड़की दलित थी। कलकत्ता में मैं मानता हूं लोग मोमबत्तियां लेकर के बाहर आए, क्योंकि अपर कास्ट लड़की है, शी इज अ प्रोफेशनल डॉक्टर हु हैज पास्ड अवे वेरी अनफॉर्चुनेटली। हाथरस में क्योंकि दलित लड़की थी, रात के 2 बजे पुलिस ने उसको जला दिया। उन्नाव के अंदर क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बनारस के अंदर बीजेपी के आईटी सेल के लोग थे जो उसका रेप करते रहे, उसका यौन शोषण करते रहे 2-3 महीने तक, और उसके बाद मध्य प्रदेश में गए प्रचार करने के लिए। साहब बताइए, मैंने पहले से एक बात बहुत स्पष्ट बताई, इसके बारे में जो आरोपी है उसका कोई दल नहीं होना चाहिए जी। मैंने ऐसा नहीं बोला है, मैंने पहले से यही बोला है कि जो इस घृणास्पद कृत्य का जो आरोपी होता है कृत्य का, उसके साथ कोई दल जोड़ने की जरूरत नहीं, उसको कानून के तौर पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। दुरुस्त बात, चाहे कोई भी दल का होने दो, आई एग्री, चाहे कोई भी दल का होने, वो दल में रहता है तो दल में यह करने के लिए परमिशन नहीं मांगता है और दल वाला कोई परमिशन नहीं देगा, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। बात वो नहीं है, हम किस नजर से उसकी तरफ देखते हैं, किसको बचाने की कोशिश करते हैं, किसके ऊपर केस चलाते हैं, वो ज्यादा मायने रखता है। आसिफ फारूकी साहब, आप हमेशा कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण, आपने ब्रिजभूषण जी का नाम लिया, कुलदीप सेंगर, आपने चिन्मय आनंद, बिल्किस बानो वाले कह रहे, बट महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी जी, बीजेपी का कहना है मोदी जी जितने काम किया किसी ने नहीं किया महिला सशक्तिकरण। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है महिलाओं का जो मोरल को डाउन करना, वो शाह बानो केस था। राजीव गांधी जी कानून बदलकर मुस्लिम महिला को और संकट में डाल दिया। तो आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हो? एक मोदी जी हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जनधन अकाउंट, ये लखपति दीदी, महिलाओं को एम्पावर करो, मगर आपका शुरुआत ही वही होता है शाह बानो केस से। आसिफ फारूकी साहब। सर मैं इसमें बहुत शॉर्ट में आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए सर। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर के लोग या प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कोई गलत काम नहीं बोल सकते, और ना ऐसा होगा कभी, ना हिस्ट्री में कभी हुआ है ना होगा। लेकिन जो उनकी पार्टी या जो लोग वो मैसेज देते हैं वो बहुत रॉन्ग देते हैं। मैं बहुत गुजारिश के साथ एक बात बोलूँगा कि आज बंगाल बंद उठाया बीजेपी ने, वही बीजेपी को चाहिए कि यूपी बंद भी करे
आसाम बंद भी करें, क्योंकि उत्तराखंड में इतना हुआ है, और महाराष्ट्र बंद भी वो कॉल आउट करें, और मुद्दा ये रखा है कि औरत के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मैं ये बोलना नहीं चाहता था आपको, लेकिन मुझको इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि अभी भी पॉलिटिक्स इसके अंदर चल रही है। सर, ये महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप उसको देख के पार्टी के ऊपर रह के काम कीजिए, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, तो मैं बहुत अच्छे से आपको मानूंगा और आपके ऊपर ट्रस्ट भी आएगा, फेथ भी आएगा, पब्लिक भी आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन आप जो है आंख बंद कर लेते हैं दूसरे स्टेट में। आप क्यों नहीं योगी गवर्नमेंट के खिलाफ में बंद का कॉल आउट करते और उनके खिलाफ में आवाज नारे लगाते? यूपी गवर्नमेंट फेल है इसके अंदर। आप एक दलित दो बहनें जो है वहाँ उत्तराखंड में, ये फर्रुखाबाद में मरी हुई लड़की भी पाई गई, उसके साथ क्या अत्याचार हुआ, क्यों नहीं आप उसके खिलाफ? बोलिए साहू साहब, बोलिए। आप उंगली उठा रहे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद में भाजपा कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से सजा दी गई, कश्मीर जिस तरीके से आतंकवाद चल रहा है, अपमानित किया गया, उसके खिलाफ नहीं है। अभी आप बोलेंगे 370 में कामयाब है, ये कौन सा तरीका मुझे बोलते साहू जी साहब बोलिए। हो जाएंगे। नहीं, ये क्यों बीच में बोल रहे थे? बोलिए साहू जी साहब, बोलिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के बाद में जिस तरीके से उनको आज 5 साल तकलीफ हो दी गए गई, 370 को, जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या हुई, जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, जिस तरीके से भाजपा हत्या कार्यकर्ता के घर में घुसकर पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जिस तरीके से मारने के तरीके आप ढूंढेंगे, खून खराब हुआ, जिस जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, उसके लिए इन्होंने आवाज क्यों नहीं करी? देखेंगे कि वो कैसे ये कान चुप के बैठे थे, ये कान चुप के बैठे थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद में जो अत्याचार हुआ महिलाओं के ऊपर, आप कहाँ थे जब? आपका राहुल गांधी कहाँ थे जब? भाई फिर वही राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद राहुल गांधी कहाँ थे? आप अगेंस्ट भी बोल दिया उन्होंने नहीं देखा कि मेरी सीट जाएगी, भाजपा कार्यकर्ताओं के घर में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ पश्चिम बंगाल में, उसके लिए आप कहाँ छुपे हुए थे उस दिन? आप कब चुप्पी साधी हुए? पॉलिटिक्स कर लीजिए सौजी साहब, लेकिन कांग्रेस और टीएमसी एक तो नहीं है ना। इनफैक्ट ममता बनर्जी जितना कांग्रेस में राहुल गांधी को कोसती हैं, नरेंद्र मोदी को शायद कम कोसती हैं सर। नहीं, सब बात ऐसी है। बंगाल, पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद में भाजपा कार्यकर्ताओं के महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, उसके लिए दल की क्या जरूरत है? वो साथ में है या पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ बंगाल आज जितना बोल रहे भाजपा, जो केरल में होता है जब कांग्रेस को चुप्पी साधती है, कांग्रेस अवसरवादी पार्टी है, ये मेरा हमेशा कहना है। जब कश्मीर में अत्याचार हुआ, कांग्रेस के कौन से दल ने निकाला था स्टेटमेंट? आपके कांग्रेस नेशनल पार्टी है, कांग्रेस पश्चिम बंगाल की गली की पार्टी है क्या सर? तो आसिफ फारूकी साहब, जो उनका फौजी साहब ने कहा स्टेट पे उनका महिला अत्याचार के लिए अलग अलग रुख अपनाएंगे। ये शर्म कीजिए फौजी साहब, अरे शर्म करो, आप शर्म करो, आपको शर्म आनी चाहिए। केरल में अपने मॉडल को ऊपर कीजिए सर। अरे केरल में एक डॉक्टर की हत्या किस तरह से हुई थी, आपको मालूम है क्या? कुछ स्टडी करो। केरल में तुम्हारे पार्टी का नेता राहुल गांधी जहां सांसद है, वहां एक डॉक्टर की किस तरह से हत्या हुई थी, यूपी का रेप करके हत्या हुई थी। एक बार मत बोलिए आप। अरे वायनाड में, केरल में क्या होता है, कश्मीर में क्या हुआ था? अब तो महिलाओं को बच के रहना पड़ेगा। अरे आपसे बचना पड़ेगा, सत्ता है आपसे बच के रहना पड़ेगा। मैं नहीं दे जरा सोशल मीडिया पढ़ो, राहुल गांधी के बारे में सोशल मीडिया क्या कहता है। गवर्नमेंट है सर, हमको बोलने को मत लगाओ। नहीं, आप मैसेज यही दे रहे हैं। कांग्रेस ने आंख बंद कर देंगे, जितना आपके ऊपर अत्याचार होगा। कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेस के लोग ढोंगी और अवसरवादी है, पेश कर दी। ये बोल के बोलेंगे। जरा राहुल गांधी को बोलना, वायनाड में पिछले 5 साल में क्या हुआ, अत्याचार हुआ, केरल में क्या हुआ 5 साल, केरल में क्या हुआ 5 साल, राहुल गांधी को पूछो। आ गए सर पॉलिटिक्स। केरल जहाँ सांसद है 5 साल, केरल में हमारी सरकार नहीं थी सर। क्या हुआ? आप कुछ भी बोलते रहिए सर। महिलाओं के बारे में क्या हुआ अत्याचार, पढ़ने वाला उसके बारे में कभी मुझसे नहीं निकला उससे।
नहीं, आपको हमको उससे अरे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हम महिला के ऊपर अत्याचार होगा, जाति होगी, वायनाड और केरल के बारे में बोलो। अगर होगा तो हम अरे उस पे तुम्हारे सियासत नहीं करेंगे। कश्मीर में क्या करते हो तुम? जितना हम बांग्लादेश सियासत में नहीं इतना करेंगे। इतना महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, कोई एक स्टेटमेंट है क्या कांग्रेस का? क्या बात करते हैं? अरे वो बोलना ही आप नहीं क्या? अरे आप तो बांग्लादेश में गवर्नमेंट को हिंदू आप महिलाओं बता के रहे हैं। ऊपर जो अत्याचार आप होता है, एक बार बोल उसके लिए तुम्हारी क्या राय है? योगी जी के अगेंस्ट में। अरे तुम आप बोलिए गलत हुआ। तुम हिंदू चलिए महिलाओं यही को बोल क्यों दीजिए। टारगेट करते हो? आप हिंदू बोल महिलाओं दीजिए, को एक क्यों बार टारगेट बोलिए करते हो? कि तुम्हारे मणिपुर में गलत हुआ, बोलिए आप। अरे तुम डुप्लीकेट, उत्तराखंड में गलत हुआ। अरे तुम अरे डुप्लीकेट, बोलिए ना ऑन रिकॉर्ड सर। तुम्हारी बोलिए ना, गोली उत्तर चाल सबके आके समझ क्या गई कर है। लेंगे? तुम बीजेपी डुप्लीकेट वाले हो, डुप्लीकेट। आपकी मेंबरशिप खत्म कर तुम देंगे। लोग कौन सा आपको डुप्लीकेट दे हो। दिया है सर? आपकी बहु बेटियां तुम पूछ आप लोग डुप्लीकेट हो। डुप्लीकेट बांग्लादेश में जब हिंदू महिलाएं वहां काटी जा रही है, जहाँ रेप हो रहे, जहाँ अत्याचार अब हो रहे, बांग्लादेश के तुम्हारे थोपड़े क्यों बंद बंगाल से है? उठ के आप बांग्लादेश चले तुम्हारे गए मुंह सर। क्यों बंद है? और तुम्हारे मुंह बांग्लादेश तुम्हारे मुंह चाइना ने बंद किए हैं। बिल्कुल। अरे तुम बांग्लादेश चाइना में के अरे दलाल, वापस भेज चाइना ने दीजिए। तुम्हारे मुंह बंद कर दिए हैं। आप वापस तुम्हारे भेज दीजिए। जॉर्ज सोरोस और चाइना ने तुम्हारे मुंह बंद करके रखे हैं। है ना? आसिफ फारूकी साहब, आसिफ फारूकी साहब, चाइना ने मोदी तुम्हारे जी, मुंह बंद करके रखे हैं। मोदी जी, बांग्लादेश के बारे में, मोदी जी महाराष्ट्र में आए थे 2 दिन पहले। मोदी जी महाराष्ट्र में आए थे। अत्याचार के बारे में बोलते हो। मोदी जी महाराष्ट्र में आए थे। मोदी जी ने कहा एम्पावरिंग वुमन, एम्पावरिंग वुमन। मोदी जी ने कहा एम्पावरिंग वुमन बहुत जरूरी है, बिकॉज आप एम्पावरिंग। को शर्म आनी चाहिए। डूब पड़ो। तुम चाइना और जॉर्ज सोरोस की दलाली करके बांग्लादेश की महिलाओं के बारे में बोल नहीं सकते। एक स्टेटमेंट है क्या तुम्हारा? एम्पावरिंग। मोदी जी महाराष्ट्र में आए थे। मोदी जी महाराष्ट्र में आए थे आसिफ फारूकी साहब। उन्होंने कहा हम दीदी को एम्पावर करेंगे, फैमिली एम्पावर हो जाता है। मोदी जी ने कहा कि देखो हमने 10 साल में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाए थे, एम्पावरिंग वुमन। 2 महीने में आसिफ फारूकी साहब 11 लाख लखपति दीदी बने। मोदी जी का कहना, बोले कि हम एम्पावर कर रहे, वुमन को एम्पावर कर रहे। वुमन ऑफिसर्स, आर्मी हो गए, सैनिक स्कूल हो गए, पुलिस हो गए, पैरामिलिट्री में वुमन को भर्ती, एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। बोले कि आवास योजना में सबसे ज्यादा महिलाओं को हमने घर उनको प्रॉपर्टी कार्ड में महिलाओं का नाम डालना शुरू कर दिया। तो ये एम्पावरमेंट क्या सही रास्ता नहीं है कि वुमन को एम्पावर करेंगे तो क्राइम्स अगेंस्ट वुमन कब होगा? आसिफ फारूकी साहब, मैं पहले आपसे पूछता हूं, फिर साहू साहब आप एक बात बता दीजिए, जुमलों की कोई अहमियत नहीं है सर। यहाँ चिल्ला के देखिए, अभी उनके प्रवक्ता बात कर रहे थे बीजेपी के। अरे तो तुमको शर्म आनी चाहिए, जरा शर्म करो, आवाज ज्यादा शर्म करो। चीन की दलाली करते हो, चाइना की दलाली करते हो, जॉर्ज सोरोस से पैसा लेके बांग्लादेश के बारे में तुम्हारा थोपड़ा क्यों बंद है? क्या बात करते हैं? चाइना को झूले पे जो है हम ही झुला रहे थे, हमने भी देखा। अरे चाइना के दलाल हो, चाइना के दलाल। मैंने पहले से बोला चाइना का दलाल है राहुल गांधी। नहीं, जिसकी तस्वीर तुमने पीछे लगाई है ना, वो चाइना का दलाल है। हाँ, नहीं, वो दलाली हम ही कर रहे थे। मेरे ख्याल से वो फोटो गलत आ गया था। अहमदाबाद के अंदर ले जाके आप, अरे छोड़ो, साबरमती के ऊपर तुम्हारे मुंह बंद करने के लिए तुमको बहुत संभाल के रखा है उन्होंने। तो साहू साहब आप ही बताइए, लखपति दीदी संभाल के रखा है उन्होंने। साहू जी साहब, लखपति दीदी के बारे में ये जुमलेबाजी से लखपति दीदी क्या जुमला है? तुम्हारी इतने शर्म आनी चाहिए। वायनाड केरल में जो अत्याचार हुआ, केरल में जो अत्याचार होता है उसके लिए राहुल गांधी थोड़ा बंद करके रख देता है। राहुल गांधी का मुंह बंद क्यों है केरल के बारे में? एक बात बोलो यार, केरल की बात करो। केरल क्या, कश्मीर क्या, वेस्ट बंगाल क्या में आता है क्या वो? अरे वो छोड़ो। तुम जो आप लोग जो काम करते हैं ना, ये जो मीडिया के सामने आने का, झूठ पे झूठ बोलने का, मीडिया के सामने तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमको। केरल के बारे में तुम्हारा मुंह क्यों बंद होता है? सर कितने लाख आपने डलवाए बैंकों के अकाउंट्स में? अरे तुम छोड़ो, अरे तुम्हारे घर देखो, जमानत पे बाहर है। अरे जमानत पे बाहर है आप लोग। मेहरबानी समझो, जमानत पे बाहर है। जमानत पे मचे उठा रहे हैं आप लोग। सर 1500 में 2 बेटियों को खरीद रहे हैं, बहन बोल रहे हैं
1500 में आप लोग जमानत पे बाहर हो, ध्यान रखो, जमानत पे बाहर हो। करप्शन पूरा देश को लूट के रखा है, सर, आप पूरे भूल देश गए को लूटा है। शायद तुम्हारे क्या पसीने का है, क्या पसीना बहाता है, क्या पसीना बहा, क्या कष्ट किया है, क्या मेहनत किया है, बाप ज्यादा कमीना और करप्शन करके देश को लूटा है क्या तुम्हारे पास? राहुल गांधी के पास कमाई का एक पैसा है क्या? अच्छा, एक मैं कमाई का जानना एक चाहता हूँ पैसा, सर, एक पैसा कमाई तड़ीपार का है राहुल उसका। गांधी है कि आप में से कोई तड़ीपार है? अरे तड़ीपार जुमला आया भाई, कहाँ क्या से, सर? तुम्हारा कमाई का एक पैसा है क्या? कमाई का तड़ीपार एक कौन है, पैसा, सर? एक पैसा अरे ये तड़ीपार कौन है, सर? मैं तो पूरा मेरे तरफ पूरा बताइए देश ना, को आवाज नहीं लूटा आ है। रही आपकी, सर। देश को लूटा हुआ पूरा पैसा है तुम्हारे ये पास। तड़ीपार कौन है, तड़ीपार? अरे देश को लूटा हुआ है तुमने, अच्छा अच्छा अच्छा, देश को तड़ीपार उसको लूटा हुआ बोलते है हैं क्या, तुम सर? लोगों ने? नहीं देश सर, को तड़ीपार लूटा, उसको बोलते 50 हैं क्या? साल लूट के बाप का मान समझ के देश को लूटा है। तुम बात करते हो मेहनत की, कमाई की बात करो। तो तुमको लक्ष्मण क्या सौदी मालूम है साहब, मेहनत क्या होती है? लक्ष्मण सौदी पैसा साहब, लेके पूरी देश लक्ष्मण को सौदी लूटे हैं साहब, कांग्रेस ने देश को लूटा है आपके मुताबिक। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, ये सब लोग देश के लुटेरे हैं। सर 11वां साल है आपकी सरकार का, अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत क्यों नहीं आया सर? 11 साल हो रहे हैं। देखिए, साहब, अभी तक तो जमानत जेल में पे डालना बाहर चाहिए है, था उनको। जमानत पे। बताइए तड़ीपार सर। संविधान, तड़ीपार इस देश बाहर में है। संविधान चलता है, वो जमानत पे बाहर है साहब, जमानत पे बाहर है। सर, जमानत पे तो मैं भी बाहर हूं। जमानत पे बाहर है। सर जमानत पे तो मैं भी बाहर हूं सर, जमानत पे तो मैं भी बाहर हूं। मैंने वो करप्शन में है, आपका नहीं सर, वो करप्शन के लिए है, वो लेकिन- करप्शन के लिए है। लेकिन सर 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 पैसे सर के सर सर करप्शन में वो जमानत सर पे सर बाहर एक है। सेकंड, एक सेकंड, लक्ष्मण सौजी साहब, प्रदीप भाई, लक्ष्मण सौजी साहब एक सेकंड। साहब, ये अगर duplicate अगर आप लोगों ने इस बात पर बोल लिया हो महिलाओं के तो जैसा अत्याचार, प्रदीप जी महिलाओं बोल के रहे अत्याचार। हैं, इन्होंने कश्मीर पे केरल बात के कर बारे में लें कभी क्यों नहीं बोला? सर, कश्मीर पे बात कर नहीं लें बोला। सर, श्रीनगर चले, हिंदू हिंदू महिला नहीं साहू होती जी क्या? साहब, लक्ष्मण सौजी साहब श्रीनगर चले। साहू जी साहब, अमित शाह ने 10 प्रश्न पूछा है, 10 प्रश्न पूछा महिला है के कांग्रेस अत्याचार को। के लिए बोलते हैं ना। अमित शाह ने, साहू जी साहब, लक्ष्मण साहू जी साहब, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह ने 10 प्रश्न पूछा है राहुल गांधी जी को। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ युद्धि फारूक अब्दुल्ला के साथ आप क्या, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने, एक संविधान, एक झंडा, एक विधान, ये सब चेंज होने वाला है, क्या राहुल गांधी एक्सेप्ट कर लेगा? क्या आर्टिकल 370 को रिस्टोर करेंगे, 35A को रिस्टोर करेंगे? फारूक अब्दुल्ला का सपना है कि बोले जीतने के बाद आर्टिकल 370 वापस लेके आऊंगा, 35A वापस लेके आऊंगा। साहू जी साहब बोलिए। साहब, इतने नहीं, जो आतंकवादी को मारा गया है उसको ये और पारितोषिक देने वाले हैं, जो आतंकवादी है उनका भी सम्मान करने वाले हैं। ये देश के खिलाफ जिन्होंने साजिश की, आतंकवादी देश आपने, के सैनिक को, देश अरे के सर ये सैनिक बताइए को ना, कब जिसने- मारे आपने? देश के सैनिक को जिसने मारा है उस आतंकवादी को ये प्रमाण पत्र देने वाले हैं, ये कब मारे? पुरस्कार देने वाले कितने हैं। दिन हुए ये बताइए ना सर, कितने दिन हुए? ढाई को दिन हो गए, कितने दिन हुए? कौन से दिन गिनते हैं? को मार के अभी कौन से दिन गिनते हैं? आतंकवादी आपने कब मारे? कौन से दिन गिनते हैं आप? अरे आपका ये पढ़ो पहले, अरे सर जो मैं पूछ रहा हूं, एजेंडा है ना लास्ट अभी, आतंकवादी कब चुनाव मारा है? चुनाव का मैं जो आपके पत्र है information आपका, के लिए बता दूं, लास्ट चुनाव वीक में का मारे हैं। चुनाव का पत्रक पढ़िए आप। अरे सुनिए चुनाव ना का सर, पत्रक मैं आप- पढ़िए। अरे सर वो कहाँ आप उधर जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं। अरे सुनो ना, झूठ काय को बोलते सुनिए हो, ना झूठ सर। काय को बोलते हो? चुनाव का जो प्रसिद्धि पत्र निकाला है उसमें क्या फिर लिखा चुनाव पे है? आ गए, चुनाव पे है, तो आप बराबर लोगों है। की आवाज निकलती जब अरे चुनाव उन्होंने आता है तो सवाल ये किया कि चीज़ हो सकता है। आर्टिकल 370 उन्होंने सवाल क्या किया फारूक है? साहब, आर्टिकल 370 क्या रिस्टोर उन्होंने करने में सवाल राहुल क्या गांधी किया साथ है? देगा? सर ये 5 राहुल गांधी जी क्या उन्होंने सपोर्ट सवाल करेंगे क्या किया फारूक है? अब्दुल्ला को? बोलने का मौका तो दे ये। हाँ बोलिए बोलिए अरे बोलिए। उन्होंने जो सवाल, साहब देखो, आपने जो सवाल किया उसके साथ जोड़कर मैंने बोला है, ये सवाल दूसरी जगह देते। फतरबाज को नौकरी देंगे वापस, फतरबाज को, स्टोन पेंटर्स को वापस नौकरी देंगे। जोड़कर मैंने बोला है, फतरबाज टेररिस्ट अटैक जो जो किया था मैनिफेस्टो उनके बनाया रेजिडेंट्स है, को नौकरी पर वापस रखेंगे। मैनिफेस्टो है, फारूक जो अब्दुल्ला, मैनिफेस्टो में जो बताया वो मैंने बोला है आपको। चलिए फारूकी साहब जवाब दीजिए, बोलिए बोलिए हाँ, सर देखिए सुन लीजिए, बोलिए। 370 को 5 साल हो गए सर, और जब 370 ये गाजे बाजे के साथ पे आए थे तो हमारी पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे थे जो ये मान गए थे कि भाई इस पे कुछ ना कुछ
मुद्दे पे लेके 370 हटाने के बाद बड़ा फायदा होगा और उसमें कुछ न कुछ कामयाबी हो जाएगी, जिसके लिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन आज 5 साल हो गया सर, आज भी आतंकवादी उसी तरीके से मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं। सॉरी टू बॉदर यू सर, सर मे आई स्टॉप यू, आसिफ फारूकी साहब मे आई स्टॉप यू प्लीज। पथराव करने को नोट मिलते कहां? अरे लक्ष्मण सौदी साहब एक सेकंड सर प्लीज, मैं आप ही की बात बोल रहा हूं, एक सेकंड। फारूकी साहब, आतंकवाद और वैली के अंदर, वादी के अंदर डिस्टर्बेंस, उसका 370 से क्या लेना दे रहा है सर? आर्टिकल 370 रिपील किया गया कि भारत देश में दो संविधान, दो झंडे नहीं चल सकते, दो संविधान दो निशान नहीं चल सकते। आर्टिकल 370 का टेररिज्म से कुछ लेना देना नहीं है सर। आर्टिकल 370 इज टू सीमेंट द रीयूनिफिकेशन और द यूनिफिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। What does that have to do with the situation on the ground? Sir, that is an army thing. वो एंटी इंसर्जेंसी, एंटी टेररिस्ट फंक्शन तो अलग हैं, चलते रहेंगे। अब आप बोलिए फारूकी साहब। सर, हमको ये लग रहा है कि 370 हटाने के बाद टेररिज्म ज्यादा बढ़ा है, वहां की पब्लिक के अंदर गम गुस्सा ज्यादा हुआ है, और जो कि ये लोग नाकाम रहे हैं टैकल करने में। मेरा ये बोलना है, वो 370 हो या 380 हो, वो मतलब नहीं। 370 फिर लाने से 370 फिर लाएंगे आप? बोलना बोलो फिर सर, मेरे को आप 370 लाएंगे फिर? आप 370 फिर लाने वाले क्या? नहीं लाएंगे या ये तो अरे नहीं, मैनिफेस्टो में बोला है, मैनिफेस्टो में बोला है आपने, मैनिफेस्टो है चुनाव का। अरे आपका चुनाव का मैनिफेस्टो है। लेकिन सऊदी साहब, 12 साल से तो राहुल जी कहीं थे। तुम देश के विघाता, देश के खिलाफ बोलते हो। अरे फारूकी साहब और सऊदी साहब दोनों, एक छोटा सा सवाल है, थोड़ा सा मजाकिया सवाल है। भारत तोड़ने पे क्यों तुले हो आप लोग? अरे सऊदी साहब, क्यों करना चाहते हो आप लोग? लक्ष्मण सऊदी साहब थोड़ा सा जोक है। एक बार क्या तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई क्या? एक बार भारत पाकिस्तान किया, तुम्हारी तसल्ली नहीं अरे हुई? सर सुनिए तो सही, और भारत के टुकड़े लक्ष्मण सऊदी साहब, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की जब सरकार बनी तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया, बराबर है। उसका पॉइंट नंबर 3 था, वी विल फाइंड वेज टू स्ट्रेंथन आर्टिकल 370। बीजेपी और पीडीपी दिशा जो ढूंढेगी 370 को और ताकतवर बनाने के लिए। सर ये आपका सीएमपी था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था पीडीपी के साथ। अब आप बताएं लक्ष्मण साहब जी साहब प्लीज। साहब 370 जब हटा दिया गया है जी, ये देश की गरिमा को, देश को सोचकर हुआ है, फिर हम 370 लागू करेंगे। सर नहीं लागू कर क्या सकते चाहिए सर, मजाक की बात है सर, ये मजाक की बात है, इट इज नॉट पॉसिबल। But it's a part of Farooq Abdullah's सर कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज नॉट पॉसिबल। फारूक अब्दुल्ला साहब बोलते रहे कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज नॉट पॉसिबल, और अगर कांग्रेस ने उस पर एग्री किया है, देन कांग्रेस आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। साहब बात ऐसे, ये संसद में संविधान का किताब लेके जिस तरह से इन्होंने शोबाजी किया, नारेबाजी किया, वो संविधान का इंसल्ट नहीं है ये सर। 370 संविधान के खिलाफ है, ये बोलिए आप पहले। आप कोई संविधान का किताब, संविधान दिमाग में चाहिए, संविधान हाथ में लेके दिखाने की चीज नहीं है। आपने जो संविधान दिमाग में चाहिए, संविधान हाथ में लेके शो करने का सिर्फ आपने कंफ्यूजन पैदा किया है सर, कोई नई चीज आप नहीं लेके आ रहे। आप पढ़िए संविधान। फारूकी साहब, आसिफ फारूकी साहब, वैसे भी 370 की कोई अहमियत बची नहीं थी जब 370 को हटाया गया। 370 की कोई अहमियत थी नहीं, वेरी फ्रैंकली। सारा देश का कानून, पार्लियामेंट के सारे एक्ट, हर चीज लगती थी उसमें। मैनिफेस्टो में है, बहुत सही बोल रहे हैं। मैनिफेस्टो ये साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, ये सिर्फ बदल के चुनाव लड़ रहे हैं, उसको अपना जो है फारूक अब्दुल्ला साहब लड़ रहे हैं। ये कौन से मुझसे मीडिया को बताते हैं सर, ये देश को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे आती। अच्छा सर, फारूक अब्दुल्ला साहब लड़ रहे हैं, के लायक नहीं रहे आती। फारूकी साहब, क्या टूरिज्म बढ़ा नहीं है कश्मीर में? कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा नहीं है, बनाने की इनको मेडिकल कॉलेजेस आए नहीं है क्या रेलवे वंदे भारत ट्रेन चले नहीं है फारूकी साहब कश्मीर में? इनको कश्मीर में सबसे ऊंचा ब्रिज हो गया, टनल हो गया, ये कितना नहीं है इनको। कल ही एक स्टेटमेंट दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर में कितना बढ़ गया, वरना कश्मीर की इज्जत दुनिया में कितनी बढ़ गई, ये दिखता नहीं है। सर बांग्लादेश का क्या हाल होगा सर? आसान हो गया। फारूकी साहब क्या बोल रहे थे आप? एक मिनट, अरे जहाँ लगते थे वो सऊदी साहब, अरे सऊदी साहब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं, आप ही की बात कर रहे हैं। आसिफ फारूकी साहब आप ही की बात बोलने जा रहे हैं।
जी आसिफ फारूकी साहब, क्या बांग्लादेश क्या? सर, इनके एक चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि सारे हिंदू एक हो जाएं, वरना बांग्लादेश में जो हाल इनका हुआ है वो हिंदुस्तान में होगा। सर डोंट बी सर नाउ यू आर बीइंग स्लाइटली अनफेयर। फारूकी साहब, हाँ सर, फारूकी साहब, यू आर बीइंग अनफेयर। वन सेकंड, सौदी साहब मुझे बोलने दीजिए प्लीज। अभी फारूकी साहब प्लीज लाइट में आ प्लीज, गए। अरे लक्ष्मण सौदी साहब मुझे बोलने दीजिए प्लीज। फारूकी साहब पूरी स्पीच सुनिए। योगी आदित्यनाथ की जो आप बात कर रहे हैं पूरी स्पीच सुनिए। उन्होंने कहीं हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने राष्ट्र शब्द इस्तेमाल किया है, राष्ट्रीय एकता की बात करी है, और उन्होंने यह कहा है बटेंगे तो कटेंगे, हमें अपने राष्ट्र को एक रखना है। कई हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। सर आप बता दीजिए मुझको, मैं आज अपने शब्द वापस लेने को तैयार हूं, माफी मांगने को तैयार हूं। पूरी स्पीच मैंने 6 बार सुनी है, एक भी जगह पर उन्होंने हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन इन सब माहौल में ये लोग ऐसा क्रिएट करते हैं कि पहले आप माफी मांगो ना, जो बोला नहीं वो नहीं बोला सर, उन्होंने हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं पहले आप किया। माफी मांगो ना। माफी मांगे सर, be fair। फारूकी साहब आप माफी सर, मांगो let's be पहले। fair, let's be जो fair। बोला नहीं वो जैसे बोला। राहुल गांधी जी के मुंह में बार बार बीजेपी शब्द डाल देती है, आप योगी आदित्यनाथ के मुंह में मत डालिए। स्टेटमेंट नहीं है, और हम खुश भी रहेंगे। अगर आपका चीफ मिनिस्टर अच्छा काम कर रहा है तो हम उसकी तारीफ भी करेंगे। हम उस गंदे लोगों में से नहीं है कि अपने स्टेट को छुपा के रखेंगे और वहां अत्याचार करेंगे। सर ये गलत बात है, हम कभी भी इस किस्म के लोग है ही नहीं। चाहे हमारे लीडर की बात के लिए आप फारूकी साहब, आप अगर ऐसा बोलते हैं तो कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुई है ना, जो टनल बना है, जो ब्रिज बने हैं, जो रास्ते बने हैं, जो डेवलपमेंट हुई है, इसके बारे में आपके शिवाजी का पुतला ढह गया सर। इससे पहले क्यों नहीं हुआ? मुंबई की टनल में घुसने डर लगता है। इससे पहले क्यों नहीं हुआ? सर, इससे हमको पहले तो- हुआ नहीं था कश्मीर में। कश्मीर में सर अब इससे कश्मीर पहले अभी नहीं हुआ था। बम्बई का अभी हाल हुआ है। जैसा शिवाजी ये का पुतला पिछले 10 ढह साल गया में- सर। ये पिछले माफी 10 मांगे साल में सिंधुदुर्ग कश्मीर में में अभी जो रहा है कुछ डेवलपमेंट पहले। हुआ, पिछले 10 साल में कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुआ उसके लिए आपने कभी स्टेटमेंट निकाला है? आप क्या बात करते हैं? इतनी बड़ा अरे इतना बात बड़ा- करते हैं, अगर इतना बड़ा डेवलपमेंट दिल हुआ है तो क्या अच्छी तुम्हारा? बात है, लेकिन उतना बड़ा शिवाजी दिल का है क्या पुतला तुम्हारा? इधर गिर गया सर। जो नोट जेब में डालती थी और पत्थर फेंकते थे सैनिकों के ऊपर, आपने कभी बोला क्या? आपने कभी निषेध किया उसका? तो मैं तो वही आपसे पूछ रहा हूँ कि 5 साल हो गए 370 को हटा के, वो पत्थर मैं क्या क्यों नहीं बोल बंद रहा हुआ? हूं? जो नोट जेब में जाती पत्थर सामने जाते थे, आप आपने कब कंट्रोल उसके क्यों बारे नहीं में कर पाए निषेध सर? किया? आज तक आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सर आप खराब तो नहीं हो आपके रहा। राज में जिनके साथ अब आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, उनका इतिहास क्या अब आ है? गए। आपको क्या अब चाहिए? आपको मिर्ची लग गई। अरे आप आपको क्या मिर्ची लग गई। लगेगी? आप जब तुम्हारे करते पास तो है कुछ क्या? नहीं। आप तुम्हारे पास PDF है क्या? हमको तो मिर्ची हमको तो लगेगी? नहीं, हमने कभी शिकायत की आपकी। आपने उनके साथ दगाबाजी अरे भी की, वो भी हमको मालूम। आप जिनके साथ अलायंस करने जा रहे हो, आप जिनके साथ अलायंस करने जा रहे हो, अरे उनका तुम क्या थोड़ी मैन्युफैक्चर कर रहे हो? आपका हमेशा समर्थन से है। आज लेकिन भी कर रहे आपने हैं। मंत्री बनाया था उनको, और वो लक्ष्मण कोई सौदी आराम- साहब। माफ करिएगा। आपकी सरकार में मंत्री थे। पहले की बात अलग है, 370 रद्द होने की बात क्या अलग है? हमारा गवर्नमेंट में मेजोरिटी 370 जब चला गया, उसकी बात बोलिए। पहले क्या हुआ? ये 370 खत्म सर करने के उमर लिए अब्दुल्ला जिसका आपके साथ में मंत्री ले थे, सकते हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब आपके प्रयास मंत्री हमने थे। किया। ये कोई आतंकवाद अटल जी नहीं की है, सरकार आपको में। मिर्ची लग रही है। सर अटल जी की सरकार में आपके मंत्री थे ना। नहीं आ रहा है। अफजल गुरु आप अफजल डिवाइड गुरु एंड को रूल फांसी करना देने के चाहते बाद हैं, वो हम आपने होने क्या नहीं किया देंगे। था? अफजल गुरु को फांसी जाति देने के बाद जनगणना, जाति जनगणना आसिफ फारूकी साहब। आप उसके जुलूस में थे। एक मिनट, जाति- अफजल गुरु, कांग्रेस अरे अफजल गुरु को तो फांसी कांग्रेस ने दी सर। आप- सर अफजल गुरु को तो फांसी कांग्रेस ने दी सर, कांग्रेस की सर, सरकार थी। ये- वही मैं बोल रहा हूँ कि ये इनको पानी दीजिए सर। साहब बात कैसे चल रही है हाँ, मेरी? ये कांग्रेस ने फांसी इनको दी, पानी कोर्ट ने दीजिए। फांसी दी, ये उसके जुलूस में थे। अरे आप पानी ये दीजिए सर, उसके पानी दीजिए। ये उसके साथ जुलूस अरे में सर थे। अफजल गुरु के खिलाफ तो एविडेंस भी नहीं उन्होंने थी। दी। अरे जिसके खिलाफ एविडेंस थी उसको तो छोड़ दिया, वो तो जिंदा है अभी, फर्स्ट क्लास घूम रहा है इधर से उधर। साहब बात ऐसे, जहां हमारी सरकार है हमने किसको छोड़ा नहीं है, हमने किसको भी छोड़ा नहीं है। सर ए राजा साहब सेकंड रो में बैठते हैं लोकसभा में। ए राजा 2G स्कैम के अक्यूज लोकसभा में सेकंड रो में बैठते हैं सर। उनको जेल में डाला मनमोहन सिंह ने, और जैसी आपकी सरकार आई उनको बेल मिल गवर्नमेंट की गई। फिक्र नहीं की उन्होंने। साहब मोदी को डाला, फिक्र नहीं की। देखो साहब एक मिनट, बोलिए सर, आप- बोलिए। आप संविधान, कोर्ट और दल
ये सब साथ में लेंगे क्या? सर आप लोग जो है ना, संविधान महाराष्ट्र में इतना संविधान आप के लोग दायरे में जो आता है, अजीत पवार संविधान है, इसलिए तो ये जमानत पे बाहर उसकी मजे तो मार पूरा रहे हैं। करियर बर्बाद कर दिया इन्होंने सर। ये संविधान अरे संविधान आपने के अजीत पवार संविधान जी का है, करियर बर्बाद कर इसलिए दिया ये सर। जमानत पर है। प्रदीप ओपन जी। मैं बोल रहा हूँ सर। संविधान का सम्मान अच्छा करना चाहिए नेता था इन्होंने। हमारा सर वो। ये संविधान खुद आसिफ फारूकी साहब, जाति जनगणना, संविधान राहुल देश गांधी के जी लिए कह रहे हैं जाति जनगणना, मगर कश्मीर में जाति कैसे जनगणना संविधान करोगे? देश के लिए वहां है, पर इसके लिए दलित, नहीं है। गुज्जर, बाकरवाड़ी, पहाड़ीज, उनको जो बैकवर्ड कास्ट है, जाति जो रिजर्वेशन था, फारूक अब्दुल्ला साहब खत्म करने वाले हैं। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि सबको जाति गणना करके, जाति जनगणना करके सबको रिजर्वेशंस दे दो, मगर फारूक अब्दुल्ला का मैंडेट है कि ये सब खत्म हो जाएगा, दलित खत्म हो जाएगा, गुज्जर खत्म होगा, बाकरवाल खत्म हो जाएगा, पहाड़ी, इनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। राहुल गांधी जी और फारूक अब्दुल्ला का जो है ना संविधान, जो मीटिंग पॉइंट कुछ भी नहीं है, अलग अलग। राहुल गांधी जी कहते हैं पूरे देश में जाति जनगणना करो और सब जगह रिजर्वेशंस दो, मगर कश्मीर में फारूकी साहब वो नहीं होगा, बिकॉज अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इनको हम रिजर्वेशन नहीं देंगे, जो दलित है, गुज्जर है, बाकरवाल है, पहाड़ी से। तो कैसे मिलन कैसे होगा फारूकी साहब? अमित शाह का प्रश्न है। ये सिर्फ राहुल जी नहीं बोल रहे हैं, ये 74% जनता बोल रही है कि सर जनगणना कराइए। अब रह गया सवाल, सर वो तो यशवंत देशमुख का सर्वे है सर, वो बोल रहे तो मगर ये कश्मीर में कैसे इंप्लीमेंट करोगे आप? कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला नहीं करने देंगे सर। हम डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं और जो इस डेमोक्रेसी सिस्टम में पब्लिक के लिए अच्छा रहेगा वो राहुल जी तो माने ही हैं, वो अब्दुल्ला जी को भी मानना पड़ेगा। नहीं, उनके जो मैनिफेस्टो में नहीं है फारूकी साहब। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन उसके अंदर हमारा कोई झगड़ा नहीं है सर उनके साथ में। सर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैसे हो सकता है फारूकी साहब? और This is the law. सर अब तो कानून है ना, अब तो कानून इम्प्लीमेंट हो गया कश्मीर सर में। ये तो अल्टू पल्टू वालों का तो पूरा उल्टा है मामला। नहीं सर, ये बताइए कि शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब्स को, जिसमें आप भाकड़वाल भी आ गए हैं, जिसमें आप गडरिये भी आ गए हैं, जिसमें आप पहाड़ी भी आ गए हैं, बाकी अन्य लोग भी आ गए हैं, दलित भी आ गए हैं, गुज्जर आ गए हैं, जिनको गुज्जर भी आ गए हैं, हाँ जी हाँ बिल्कुल, भट्टी जो एक गुज्जर भी हैं, जिनको पहले रिजर्वेशन नहीं थी, अब उनको आर्टिकल 370 रिपील के बाद रिजर्वेशन मिल गई है। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे, और आपके पार्टनर हैं वो इलेक्शन के। सर बहुत सी जगह पे तो बीजेपी रिजर्वेशन ही नहीं चाहती है, तो उसका आप क्या बोलेंगे? सर वो ऑफिशियली तो कभी नहीं बोला उन्होंने, हो सकता बिल्कुल नहीं है देना चाहते सर, हो सकता है, लेकिन ऑफिशियली कभी नहीं गलत बोला। है साहब, ये गलत बात बोल रहे हैं। साउदी साहब बोलिए, साउदी साहब नहीं, आधिकारिक तौर गलत पे तो बोल कभी रहे नहीं हैं। बोला गया। साउदी साहब बोले मिलन कैसे होगा? भी खिलाफ नहीं है। आप देना चाहते हैं क्या? मैं नाम लूं? बोलिए बोलिए। आप तो सीधा डायरेक्ट यूपीएससी में लेना चाहते थे सर, आपने तो प्लेन करने की कोशिश की थी जी। आप बोलिए, ऑन रिकॉर्ड बोलिए कि आप नहीं ऐसा करना चाहते थे। नहीं सर, आप गलत बात बोल रहे हैं, आप नहीं, सरासर झूठ और गलत बात बोल रहे हैं। भाजपा का रवैया ऐसा कभी भी नहीं है। अच्छा वो रिजर्वेशन के फेवर में है, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ सर, ये बोलिए। सर बीजेपी रिजर्वेशन के फेवर में है, क्यों नहीं है? भाई सवाल ही पैदा नहीं होता आपके मुंह से। क्या हमारी पूरी पार्टी, पूरा दल, सरकार सब वही बोल रही है। तो आपने डायरेक्ट उसमें उठाने की कोशिश की थी कि उसमें हम कोई भी रिजर्वेशन नहीं चाहते। साहब देखो, कहीं भी गलत बात मत बोलो, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। साउदी साहब आप क्या करेंगे अगर फारूक अब्दुल्ला जीतता है कश्मीर? हमने तो तो दलित, गुज्जर, बाकरवाल और पहाड़ी का क्या होगा? बीजेपी क्या स्टैंड लेगी? फारूक अब्दुल्ला कह रहा है कि हम उनका रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, मींस उनका एजेंडा मैनिफेस्टो में वो है। राहुल गांधी जी भले और कुछ कर रहे हैं, अगर फारूक अब्दुल्ला जीतते हैं, साहब साहब अमित शाह जी का प्रश्न है, क्या होगा? साहब ये सवाल तो अमित जी ने हमने उठाया है ना, हाँ, जवाब तो इनको देना चाहिए। सर मुझको तो उनके सवाल के ऊपर एक ही चीज समझ में आ रही है कि सत्ता में कौन है, हम लोग हैं कि अमित जी हैं? अरे चुनाव के बारे की बात चल रही है। सवाल ये बात कहाँ की चल रही है? आप लोग तो राहुल जी से और कांग्रेस पार्टी से इतना डर गए हो कि हर अरे वक्त छोड़ो यार, हम क्या करेंगे? आपने तुमने 4 अरे आप खामोश रहिए, आप तो सत्ता के अंदर है। एक चुनाव में 10-20 ज्यादा सीटें आ गई, तुम भूले कर रहे हो। जरा आने दो चुनाव अभी। बड़े नेताओं से पूछिए उनकी रात की अरे नींदें छोड़ो, खराब। ये बात मत करो। तुमने आपकी रात की नींदें खराब है सर। पैसा लाके
विदेश से पैसा लाके भारत में खर्चा किया। अब ये क्या आप बात आए, करते हैं आप? अगर विदेश से क्या बात पैसा या करते कोई हैं? गलत तरीके जो से विदेशी पैसा आया, संपत्तियों बंद कर के साथ दीजिए आप। बैलेंस करके सर, आप वो तो फिर आपकी गलती है ना, सर। संविधान इतनी आपके ताकत लगाने के बाद हाँ। आपके होश उड़ गए। इतनी यानी विदेशी आप ये ताकत का बोलना पैसा चाहते हैं यूज कि करने के आपकी बाद सरकार भी जो हम है, सत्ता में आए हैं। फेल है। तुम्हारे नाक में दम आया पूरे। सर, पूरा आप- जॉर्ज आप- सोरोस आप और बोल राहुल रहे गांधी हैं इकट्ठा कि होकर बाहर से पैसा हमारा आया कुछ साल बाका नहीं और कर आप सकते आप कुछ लोग। नहीं कर पा रहे। सर, एक आखिरी सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट छोड़ो, सवाल है। अरे जेंटलमैन, जेंटलमैन, जॉर्ज सोरोस और चाइना साथ में होने के बावजूद हम जीते हैं तुम्हारे खिलाफ। अच्छा, आप क्या लक्ष्मण बात साहब, कर रहे हैं? एक चीज ये छोटी सी बात भारतीय है। जनता है। अरे भारतीय फारूकी जनता साहब, है। आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप जरा चुप रहिए एक मिनट, जरा सौजी साहब इसका बात दे। एक है सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, एक संस्था है सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, जिन्होंने बहुत काम किया है इलेक्शन वगैरह के ऊपर। उन्होंने ये डिस्कवर किया है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ही कि तकरीबन सडनली इलेक्शन होने के बाद 5.5 करोड़ एक्स्ट्रा वोट उस पर दिख रहे हैं। उसको लेकर के वो कोर्ट गए हैं। उनका ये पूछना है कि 5.5 करोड़ एक्स्ट्रा वोट कहां से आए। उनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को जो आखिर की 60 या 70 सीट मिली हैं वो मिलनी नहीं चाहिए थी, ऐसा उनका मानना है। अभी केस सुप्रीम कोर्ट में गया है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप लक्ष्मण सौजी साहब? नहीं साहब, हम तो देखो इसके बारे में जो भी कुछ सर्च किया होगा ना उन्होंने, जहां कांग्रेस की सीट चुन के आए हैं वहां इसकी खोज करनी पड़ेगी हमको। ये मालूम पड़ेगा इनके ज्यादा के ज्यादा है। तो अरे करिए सर, 40 के 90 हो गए ना, 99 इसके ज्यादा। बारे में हमको शक है। 99 सीट मुझे लेना तो चाहिए शक था है सौजी क्योंकि साहब। इनका ऐसा कुछ काम नहीं था। इनके बड़ा 50 चश्मा सीट लगाइए वजह से सर। आए वो हमको ढूंढना पड़ेगा। जी, इसीलिए हम बोल रहे हैं मशीन। लेकिन सर वो महाराष्ट्र में अरे चुनाव क्यों नहीं हो रहे? अरे तुम छोड़ो, काय को बदमाशी करते हैं। बगैर जहाँ मशीन के मशीन आप तोड़ी देंगे। गवर्नमेंट का आ डिजाइन जाइए करो ना मैदान तुम्हारे में। तुम्हारे सांसद का मेहनत डिजाइन करवाइए। करो। अरे तुम्हारे जो 90 आए हैं ना, तुम्हारे जो आए हैं ना उन्होंने मशीन की डिजाइन वजह से करो। आ गए। उनका थैंक डिजाइन यू करो सर, सिर्फ। थैंक यू। मशीन की इसीलिए क्या हम बात बोल रहे करते हैं, हैं? मशीन हटाइए। अरे जो सांसद चुन के आए उनका डिजाइन करते हैं क्या बड़ी बड़ी बात करते हैं मीडिया? क्या बात? उनके एक सांसद को पूछो, एक सांसद को पूछिए, तुमको बाद में भेजेंगे नहीं बात करने को डिबेट पे। क्या बात करते हैं? सर, आप क्या है पहले उसको? महंगाई मैन मोदी साउदी बंद साहब, कीजिए कांग्रेस का मशीन। कहना है महंगाई। जो चुन के आए उसको एक सांसद को पूछो, क्या डिबेट में बात करते हैं आप? महंगाई महंगाई एक- बेरोजगारी एक- एक बेरोजगारी सांसद को महंगाई आप कंट्रोल नहीं कर पाए साउदी साहब। वो रिजाइन देगा क्या? आप कंट्रोल नहीं कर पाए महंगाई और बेरोजगारी, ये कांग्रेस का रोज का कहना 40 के है। 90 हो गए, तुमको अच्छा लगता है ईवीएम? राहुल हाँ? गांधी जी बार बार नहीं, रोज अच्छा चिल्ला नहीं रहे कि लगता, हम तो महंगाई बोल रहे हैं, बेरोजगारी। आपकी सरकार है, चेंज कर दीजिए सर। हम अरे ताली बजाएंगे। ईवीएम पार्टी का, हम ईवीएम ताली रखना या न बजाएंगे। रखना पार्टी का कहीं मत भी नहीं होता है। एजुकेशन नहीं करेंगे, लिख के देंगे सर। ईवीएम रखने का फैसला राजनीतिक दल का नहीं होता है। क्या राजनीतिक करते हैं आप? क्या पार्टी में काम करते हैं? क्या डेमोक्रेसी में काम करते हैं? हाँ, क्या तो प्रवक्ता इलेक्शन की जिम्मेदारी कमीशन है आपके आप भी हमारे साथ ईवीएम आइए। ईवीएम चलिए, भाजपा की आप भी पार्टी हमारे तय करती है साथ क्या? आइए, आप बोलिए गलत है। जो चलिए, आप भी चुनाव बोलिए, निर्वाचन मेहनत आयोग जो करते हैं, है, ऐसा बोलिए। जो निर्वाचन आयोग है, जो चुनाव कमीशन है, इलेक्शन सर, कमीशन है, आपकी बात सर उसके ऊपर आंखों पे, तुम्हारा भरोसा आप नहीं है हमारे क्या? साथ आइए, आप भी बोलिए कि ये गलत हो रहा है। आप अरे भी सुनो बोलिए। ना, आपका चुनाव तो आपका सीबीआई के ऊपर भरोसा नहीं, आपको ईडी के ऊपर, कौन आपका बोला सैनिक भरोसा के ऊपर नहीं है? भरोसा नहीं, आपको हमने- चुनाव हमने के भरोसा CBI नहीं। और तुम्हारा किसी पे भरोसा नहीं क्या कहा, राहुल आप गांधी गलत के है। ऊपर है? जॉर्ज सोरोस तुम्हारा भरोसे का आदमी हो सकता है, चाइना तुम्हारा भरोसे का हो सकता है, भारतीय कोई भी एजेंसी आपके भरोसे की नहीं है। हमारा क्या लेना था? क्या बात करते हैं? चाइना से हमारा क्या लेना देना है? बराबर है, गुलाब- क्या गुलाब लेना तो देना? देना जाके हमारा है। पूछो जरा घर में जाके अकेले में, अरे हम तो MOU क्या किया था चाइना के साथ? लेके नहीं गए। अच्छा, सब आप तो चलते- अहमदाबाद चलते- जो गए, देश के बॉर्डर पे जो चले गए। चालू है ना मणिपुर में, बांग्लादेश में, ये आपकी देन है। अच्छा क्या बात लक्ष्मण करते हैं सौजी आप? साहब, अरे तो आप चले जाते वहाँ। लक्ष्मण सौजी साहब और आसिफ फारूकी आपको साहब, आपको भविष्य में दिखाई देगा, चलते इसका चलते परिणाम भविष्य में देखेंगे आप, लक्ष्मण सौजी इसका साहब, परिणाम भविष्य में देखेंगे आप। लक्ष्मण सौजी साहब, लेकिन एक बात तो है जिसके ऊपर आसिफ फारूकी साहब को, नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट करना चाहिए। नंबर 1, 53 करोड़ जनधन अकाउंट खोले गए। भले कैसे कैसे फंक्शन कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, दे वर ओपन, इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, द होल वर्ल्ड इज अमेज्ड, record. हाउ डिड दिस हैपन? और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड अरे ये सर पूरी बात तो सुन जीरो लीजिए। बैलेंस सर, आज तक उसमें कोई पैसा नहीं आया। हाँ मालूम है सर, मालूम है। दूसरी चीज,
दूसरी चीज, आर्म्ड फोर्सेस को OROP नहीं, ऑलमोस्ट 70% वन रैंक वन पेंशन मिला. ओनली द मोदी गवर्नमेंट कुड हैव डन इट, नोबडी एल्स डिड इट, नोबडी एल्स वाज विलिंग टू डू इट. वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया गया, लेकिन सबकी तनख्वाह बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाई गई, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? अग्निवीर आ गया. उसके ऊपर बाद में बात करेंगे. लेकिन चलते चलते फारूकी साहब पहले, आप लक्ष्मण साहू साहब उसके बाद. लक्ष्मण साहब जी आपके पास आ रहा हूं. सर ये कंगना रनौत जी के बारे में कुछ कहेंगे क्या? मतलब मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी कंगना रनौत जी जो बोल रही हैं किसान बलात्कारी होते हैं, मतलब कातिल होते हैं वगैरह, ये क्या है सर? सर मुझसे पूछ रहे हैं आप? फारूकी साहब आपसे पूछ रहा हूँ. हाँ सर, मुझको लगता है कि बीजेपी को इस किस्म की औरत को रख के न सिर्फ जनता की, फार्मर्स की, इस देश की छवि खराब हो रही है, बल्कि खुद बीजेपी की छवि खराब हो रही है. और मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि ये उसका जो भी तरीका हो, एक वर्ड मैं बताऊंगा, एक्शन नहीं, इलाज करवाएं से. हो सकता है कि वो दिमागी फतूर भी हो सकता है, तो उसका भी इलाज करवाना चाहिए. मैं इनसे बहुत मोदबाना गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के कि इस किस्म की औरत को मेरे ख्याल से ये इलाज करवाएं. मुझको उसके ऊपर भी बहुत रहम आता है, हो सकता है वो बीमार हो सकता है. बस मैं इतनी कहूँ. सौजी साहब, डोंट यू थिंक बीजेपी को कंगना रनौत जी को अच्छी तरह ब्रीफ करना चाहिए था कि भाई पार्लियामेंट में आने के बाद किस किस्म का बिहेवियर होना चाहिए, किस किस्म के वक्तव्य आने चाहिए? इसकी वजह से बीजेपी को एक स्टेटमेंट इशू करनी पड़ी कि भाई वो ऑथराइज नहीं है और आगे से ऐसी स्टेटमेंट ना दे. आपको लगता नहीं गलती बीजेपी नेतृत्व की भी है? उनको अच्छी तरह ब्रीफ करना चाहिए था कंगना जी को कि यार ऐसी स्टेटमेंट मत दीजिए. बोलिए सर. लक्ष्मण साहू जी. सब बात ऐसी है, ऐसा है जी, बोलिए सर. उसके बाद में तुरंत पार्टी ने स्टेटमेंट सर, दिया. आपके बोलने से पहले एक वर्ड बोल दूं मैं सर? सर आप बोल रहे हैं तो आपको रोक. बोलिए. मैं माजरत के साथ, मुझको लगता है ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना, वो यही है इनका. चलिए, ओके. एग्जांपल. लक्ष्मण साहू जी साहब आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज. एकदम देखो साहब, देखो साहब, ये फारूकी साहब जो है ना, इन्होंने पीलिया की ऐनक पहन के रखी है, बाकी कुछ नहीं है. तो सर कंगना रनौत जी को अच्छी तरह वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में इनका 1% भी इनका स्टडी होगा ना तो बहुत काफी है. 1% वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में. तो कंगना रनौत जी के बारे में बोलिए ना सर. जो आपने पहली बात बोली ना, 53 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट में लिया गया. जी, लिया गया. अभी बीच में मत बोलो आप. 53 करोड़ लोगों को जो जनधन के अकाउंट में लिया गया, उसमें 60% महिलाएं हैं. और वो महिलाएं ऐसी है कि जहां जिनको समाज में उनको बड़े पैमाने पे कर्ज मिलना, बैंक में अकाउंट नहीं, कोई भी आर्थिक व्यवहार उनका एक सम्मान से नहीं होता था. ये जो पहली बार भारत के इतिहास में हमारी सरकार आने के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री के बाद औरतों के बारे में, समाज के बारे में, आर्थिक दुर्बल के बारे में जो सोचा गया, उसका जो स्तर था वो ऊंचा किया गया. उनको सरकारी प्रक्रिया में सम्मान दिया गया. ये पहले इसके बारे में सोचो. वुमेन एम्पावरमेंट और गरीबी के नियंत्रण रेखा के ऊपर लाने के लिए समाज के साथ जो होना चाहिए सरकार बोल के, इससे पहले नहीं हुआ. कांग्रेस के सरकारों में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन हमने ये करके दिखाया कि ये हो सकता है. इतना ध्यान रखो. जो आर्थिक स्तर पे जो आज दुनिया में हमारा नाम लिया जाता है, जो कोरोना जैसे संकट काल में भी हमारा देश आर्थिक उन्नति से पीछे नहीं रहा और देशों के फारूकी साहब जो सावली साहब बोल रहे हैं उसमें सत्य है कि के बारे में प्राइम मिनिस्टर को गिनाया कल्याण उसमें हुआ. प्राइम मिनिस्टर जो साहब इसमें एक मिनट बात ऐसे, लखपति दीदी का जो कार्यक्रम बनाया गया, 3 करोड़ लखपति दीदी हम बनाने जा रहे थे, उसमें से 1 करोड़ पिछले 10 साल में हो गए. पिछले सरकार आने के बाद अभी 11 लाख के ऊपर आंकड़ा गया है 2 महीने में. अभी जो ये महिलाओं का उच्च स्तर लाने के लिए, ये समाज का आर्थिक स्तर अच्छी तरह संपन्नता देश के विकास के लिए ये जो प्रयास हो रहे हैं, इससे पहले कभी हुए नहीं.
इसके तो तरफ फारूकी साहब, विरोधी दल को आज जो देखने के रिपोर्ट लिए कार्ड समय मोदी नहीं साहब है। दे रहे हैं, फारूकी साहब, जो साहूजी साहब बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देखो पीएम जनधन से पीएम गरीब कल्याण योजना हो सका, पीएम किसान सम्मान हो गया, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, पीएम फसल बीमा जो गरीब किसान का फसल डिस्ट्रॉय था वो कंप्लीट करीबन 1.56 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर पाए जनधन अकाउंट के माध्यम से, पीएम उज्ज्वला फंड। तो ये क्या आप फिर बोलेंगे जुमला है फारूकी साहब, ये आप बार बार बोल रहे हैं कि जुमला है? साहब जॉर्ज सोरोस और चाइना साथ में लेकर इनके 90 सीट आ गए, इसलिए तो हो गया। तो हम फारूकी साहब तीसरी बार सत्ता में इसीलिए आए। मुझको बोलिए फारूकी साहब। तीसरी बार सत्ता में हमको जनता ने इसलिए दिया, ये सब किया इसलिए दिया, और इनको ये 50 बढ़ गए ना, अभी ये कोर्ट से मालूम पड़ेगा ये 50 कैसे बढ़ गए। फारूकी साहब ये सब स्कीम जो है, क्या आपको नहीं लग रहा है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, किसान गरीब कल्याण, समाज के बारे में कभी सोचा ही नहीं आप लोगों ने। फारूकी साहब, करप्शन सर उनको बोलने तो दीजिए। सिर्फ आपने साहूजी साहब, फारूकी साहब को बोलने दीजिए ना सर। जी फारूकी साहब बोलिए। हाँ, इन्होंने कहा करोड़ों महिला जो है करोड़पति हो गई, ठीक है, 60% ऑफ 53 करोड़। हाँ, 60% ऑफ 53 करोड़ जी, 60%। उस करोड़ों में से इनको एक महिला मिली, वो कंगना मिली जी। और वो कंगना इनकी जलन क्यों है कंगना के बारे में मालूम है? क्या जलन है साहब? इनकी कंगना के देखो, मुझको शर्म कंगना रनावत, आपको देखो आईना दिखाना चाहता हूँ जो उन्होंने कि आप उनको बोलने तो जो दीजिए। अपनाना चाहिए ये अपनाया। हमारे भाई जो लेकिन मेहनत कंगना रनावत पसीना लगा के ये एयर रानावत कंडीशन में सांसद बैठने है, वाली औरत लोगों ने वोट गाली दिया दे है। रही है और आपके आप मेहरबानी से नहीं है कंगना रनावत वहाँ पे। आपको आपके शर्म भी अरे नहीं आ आपके रही है। कंगना फारूकी रनावत साहब, आपको कंगना रनावत अरे को फुल आपको सपोर्ट देना रनावत चाहिए। चुन के आई है, उस जैसी कंगना औरत को रनावत आपको बुला सांसद के चुनकर आई है, निकाल लोगों ने देना उसको चाहिए। वोट दिया है। आपके और मेहरबानी क्या से नहीं दूसरा है। आसिफ फारूकी साहब, आपको फारूकी कंगना साहब, रनावत को कंगना रनावत पूरा सांसद में समर्थन देना चुनकर आई चाहिए। है। आपके मेहरबानी से नहीं है वहाँ पे वो। सर कंगना रनावत को इसका फारूकी मतलब साहब है आपको कि पूरा उसको समर्थन देना लाइसेंस चाहिए। मिल गया है, फार्मर को गाली दे। लाइसेंस नहीं मिला, पार्टी हाँ, ने तो अपना फिर आपने रवैया क्या एक्शन लिया तुम्हारे बताइए? जैसे अरे हमको- फारूकी साहब, अरे, कंगना रनावत ने आपको केरल हरियाणा में- जितवा दिया। केरल में महिला के ऊपर रेप फिर होने वही के केरल बाद पहुंच गए। तुम्हारा मुंह हम बंद रखा आपकी था। सांसद की बात कर रहे हैं, तुम्हारा आप मुंह केरल पहुंच हमारा गए। मुंह बंद नहीं है। आसिफ फारूकी स्टेटमेंट साहब, आसिफ फारूकी साहब, आपको कंगना रनावत ने हरियाणा जितवा दिया है, याद रख लीजिए। तो आपको तो कंगना रनावत का धन्यवाद देना चाहिए। बुके भेजिए सर उसको एकदम, और उनको बोलिए कि जितना बोल सकती हैं बोले। खुदा ना खास्ता गाली दे के फार्मर्स को हम जीतना नहीं चाहते। हम ये बात आपने अच्छे में नहीं ले रहे भाई साहब। डॉक्टर महिला के ऊपर बिल्कुल नहीं। केरल में रेप होता है, हमारे तो किसान आप भी भाइयों को चुप्पी गाली साधते हो। देके अरे उनके कंगना गाली पे रनावत हम के बारे जीतना में नहीं बोलने के चाहते। बजाय पहले तो जो डॉक्टर के ऊपर कोई भी रेप होकर महिला हत्या उनको होती है गाली दे और हम उसके बारे जीते, में हम बोलो रखना ना नहीं पहले। चाहिए। आप जी। वो बोलो जो महिला के ऊपर रेप होता है, अत्याचार होता है, उसके बारे में आप चुप्पी साधते हो। कंगना यूपी रनावत में क्या हुआ बात सर। करते हो? उत्तराखंड में हुआ सर, हैं? तो आसाम में केरल हुआ में चुप्पी सर। साधते हो, जरा बोलिए, पश्चिम बंगाल बोलिए। में, बांग्लादेश में, कश्मीर में एक बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा कब से बन गया? आप लोग। सर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। अरे आप लोग हिंदू महिलाओं के खिलाफ जो रोज रवैया अपनाते हैं, शर्म आनी चाहिए तुमको। आ गए हिंदू और मुसलमान। बराबर है। अब अरे मजा आएगा सर, बहुत अच्छा। अरे आगे क्या मैं खुला बोलता हूँ, यानी तुम्हारी हिंदू जैसे बहन डुप्लीकेट आपकी नहीं है। बहन, मुसलमान औरत आपकी बहन नहीं। अरे आ गए मुसलमान औरत हमारे के लिए लिए हमने तो बहना हिंदू माना है मुस्लिम उनको। सब एक अरे बराबर है सर। देखो आ गए साहब, आप हिंदू और हमने मुसलमान अरे के आ साथ। गए क्या? हमने 53 करोड़ लोगों में से मुस्लिम महिलाओं को अलग नहीं किया है तुम्हारे जैसे। तुम लोग दरिंदे लोग हो, तुमको हिंदू और मुस्लिम बहन अलग दिखती है, हमको नहीं। हमको मुस्लिम बहन भी मुस्लिम बहन ही है और हिंदू बहन है। तुम्हारे लिए मुस्लिम बहन और हिंदू बहन सर, शत्रु आपने है। ये 1500 तुम्हारा रुपए दरिंदा, देके तुम्हारी महाराष्ट्र दरिंदी में नजर उनका है। वकार गिरा दिया सर। आप उनको उनके पैरों पे खड़ा करते, ये 1500 की भीख नहीं देना चाहिए था आपको। अरे ये जो छोड़ो, 1500 की तुमको आपने अभी दिया, भीख लगती है क्या? फिर तुमको अभी भीख लगती है? अरे जिसके घर में कमाई का पैसा आता है ना, जी बोलिए तो बोलिए सुप्रिया जी ने पहले कंगना रनावत जी के कोई रेट पूछा था क्या? उनका रेट एकदम बढ़ गया। जिसके घर में फारूकी कमाई का साहब। पैसा आता है उसको मालूम है 1500 क्या होते हैं। हरामी के लूट के पैसे तुमको क्या समझेगा 1500 रुपए क्या होता है? बाप का मार समझ के देश लूटने वालों को
क्या समझेगा? 1500 एक रुपए क्या होते सिलेंडर का हैं? पैसा दे रहे हैं आप, जो पसीना पसीना बहा के घर में शाम को आता है, एक उसको मालूम सिलेंडर है। का पैसा दे रहे हैं आप। लाड़की एक बहन सिलेंडर। सक्सेस है फारूकी साहब। लाड़की बहन से आप डर गए, आप डगमगा गए पूरे एमवीए लाड़की बहन योजना से। जो फारूकी पसीने साहब से कमाता है उसको मालूम है अरे हम 1500 तो क्या होते इलेक्शन के हैं। लिए तैयार बैठे हैं सर। जो हराम के लूट के मिलते हैं डिक्लेयर उसको करवाइए 1500 ना। नहीं समझेंगे। लाड़की डिक्लेयर बहन आपको करवाइए ना। झटका देगा आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में एमवीए को। बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए सर, झटका इनको आ रहा है कि नहीं? अरे तो आप- राव जी साहब, मैं महाराष्ट्र क्या बोल में रहा हूं? चुनाव क्यों नहीं हो हमने रहे? हिंदू बहन और मुस्लिम बहन में फर्क नहीं किया। इतना अरे ध्यान तो रखो। बहुत अच्छी बात है सर महाराष्ट्र में आगे चुनाव आपने क्यों नहीं हो रहे बोला सर, ये तो क्यों? बता दो। कैमरा महाराष्ट्र में चुनाव कब होंगे सर? लाड़की बहन सक्सेस है फारूकी साहब। नाम बोलते हैं लाड़की बहन और देते हैं 1500 रुपया, पैर पे खड़ा नहीं करते सर। ये हम लोग साहब, हाँ ये 1100 में सिलेंडर इनको आ रहा है। 1500 रुपए मेहनत के 1500 रुपए इनको कभी 400 जिंदगी रुपए में मालूम नहीं है। देती थी मेहनत क्या कांग्रेस होती की है? गवर्नमेंट। आज वो 1100 कर दी है मेहनत और अभी तक मेहनत- महंगाई नहीं हुई सर। कष्ट क्या होता है, मेहनत क्या होता है, आप लोगों को मालूम नहीं। कांग्रेस वालों को 50-60 रुपए। कांग्रेस वालों को लूटना मालूम है, लूटना। हाँ इसीलिए सर बस, 110 फारूकी साहब, चलते चलते एक सवाल, देश को क्योंकि नुकसान लाड़की बहन के बारे में बात हुई। फारूकी साहब, सही आपने कहा। आपकी बात बिल्कुल जितने नोटें बिल्कुल दुरुस्त मिलती है, ना, करोड़ों मैं आपके साथ खड़ा हूं। हॉस्पिटल कांग्रेस के के अंदर सांसद के घर में। बीमारों से लक्ष्मण सौजी आप साहब, GST ले मैं लेते फारूकी साहब के साथ हूं यहाँ पे। हैं। मैं एक सेकंड, मैं यहाँ पे फारूकी साहब के साथ हूं। फारूकी साहब ने कहा 1500 रुपए कुछ नहीं होते, आई एग्री विद यू। तो सर कर्नाटक में, तेलंगाना में और हिमाचल प्रदेश में आप कितना पैसा दे रहे हैं सर हर महीने का? हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में और तेलंगाना में आपकी सरकार है कांग्रेस की। यहां तो ये 1500 रुपए दे रहे हैं ना, आप कितना दे रहे हैं? 15,000 दे रहे हैं क्या महीने का? नहीं सर, हमने जो कर्नाटक में वादा किया है नहीं सुनिए उसके ऊपर पूरा कर रहे हैं हम कर्नाटक में जो मुस्लिम आर्थिक दुर्बल है उसके लिए स्कीम है। फिर वही हिंदू आर्थिक दुर्बल के बारे में स्कीम हिंदू नहीं है। मुस्लिम आप लोग हैं। कर्नाटक में हिंदू आर्थिक दुर्बल के लिए स्कीम नहीं है, मुस्लिम आर्थिक दुर्बल के लिए स्कीम है। नहीं, आप गलत बात But कर रहे that हैं। by the way, अरे ये that सही by है। the आप way is देखो illegal. कर्नाटक में देखो, गलत क्या? सर आपको मालूम आप है ये? कर्नाटक में देखो लक्ष्मण आपकी सौजी सरकार साहब, क्या हिंदू रवैया मुसलमान अपनाती that- है? that scheme won't stand. कर्नाटक में देखते हैं कि- हिंदू बहन नहीं, मुस्लिम बहन है सिर्फ। वो स्कीम हमारे हम पास ये हिंदू देखते हैं मुस्लिम कि अलग नहीं है। गरीब रेखा के नीचे कौन है? साहब साहब, चाहे ये वो फारूकी हिंदू हो साहब चाहे को कोट मुसलमान। करने दो। हम हिंदू हमने मुसलमान देखते ही हिंदू नहीं और सर। मुस्लिम बहन को अलग किया नहीं है। लक्ष्मण सौजी साहब, मुस्लिम बहन को अलग किया लक्ष्मण नहीं है। सौजी साहब, आपने अगर कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम बहन को अलग किया है। ये स्कीम कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगी, आपको पता है। कोर्ट विल थ्रो इट आउट, यू नो दैट क्वाइट वेल। लक्ष्मण सौजी साहब, स्कीम या तो सबके लिए होती है या किसी के लिए नहीं होती है। साहब कर्नाटक में अलग है, मालूम है सर, कर्नाटक में मालूम इनका है, एजेंडा अलग है साहब। मालूम है, मालूम है, मालूम कर्नाटक है। में इनका एजेंडा अलग है। क्योंकि कर्नाटक को हमारे रिक्शा वाला, एजेंडा बदल रहे हैं कर्नाटक में हिंदू रिक्शा वाले को कर्जा नहीं मिलता है, मुस्लिम रिक्शा वालों को मिलता है। ये सर गलत वो बात है। माइनॉरिटीज के लिए अलग है। मैं सर आपको वो minority की स्कीम अलग है। आर्थिक दुर्बल के ऊपर स्कीम होनी चाहिए। हमारी स्कीम बता हमने- दीजिए। Thank you, हमने gentlemen. 53 Thank you करोड़ very लोगों much. का अकाउंट खोले, हमने 53 करोड़ के अकाउंट खोले, But लेकिन congratulations, उसने मुस्लिम gentlemen, महिलाओं को नहीं अलग किया है। congratulations. कांग्रेस ने शर्म करो इस बात पे, हम गर्व करते हैं इस बात पे। हम हाँ, उसमें 15 लाख डाल दिया आपने। हिंदू और मुस्लिम बहनों को अलग 15 नहीं किया लाख हमने। डाले, बेचारी बैठी हुई है, बूढ़ी हो गई है अभी। जी 12 साल हो गए सर। आएंगे सर, आएंगे 15 लाख भी आएंगे, जरा सब्र कीजिए, आएंगे तुम चिंता मत, हमारे 2047 नीचे तक हुए। आएंगे सर। तुमने साहू जी देश साहब, लूटा है, शरद हमें लूटा नहीं है। पवार जी कह रहे हैं कि 225 सीट्स मिलेंगे एमवीए को। साहू जी साहब, बिल्कुल मिलेगी सर। हाँ? 225 सीट शरद पवार साहब बोल रहे हैं एमवीए को मिलेगा। अभी बात आई बिल्कुल थी मिलेगी सर, सर। लोकसभा में हमारी कोई 2-4 गलतियों की वजह से उनको थोड़ी हाँ, ऊपर कर आया है। वो गलती का वो अभी एहसास है विधानसभा में नहीं होने वाला है। सर एक गलती बताइए ना सर। विधानसभा में लाडली बहना ने इनको सबको खत्म कर दिया है। चलिए, वेरी गुड कमरे सर, में आपको वंडरफुल। लेके- लेकिन कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी। ये शायद आप लोगों को मालूम नहीं फारूकी है। साहब, हिंदू एक बहन छोटी और सी खबर दे मुस्लिम बहन दूं। में फर्क मत करो अरे लक्ष्मण सौजी साहब, आसिफ फारूकी साहब, एक छोटी सी खबर साहब। दे दूं। हिंदू और मुस्लिम बहनों में फर्क मत करो। अरे सर, पहली एक बात छोटी फारूकी सी साहब, खबर दे दूं क्या? अगर आप सच्चे फारूकी हैं, अगर सौजी आप साहब। सच्चे फारूकी हैं, अरे लक्ष्मण सौजी साहब, आप तो बड़े खुश हो आप जाएंगे। हिंदू और मुस्लिम बहनों में फर्क मत करो। लक्ष्मण सौजी साहब, आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे ये सुन के। सुन लीजिए फारूकी साहब, आप भी सुन लीजिए। प्रदीप जी, शायद आपको भी नहीं मालूम होगा, अभी अभी खबर आई है कि एकनाथ शिंदे सरकार ने सिद्धि विनायक मंदिर के आसपास जो है एक सिद्धि विनायक कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है।
वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल मेकओवर होगा, वहाँ पे अलग अलग उद्यान बनेंगे, अलग अलग ऑडिटोरियम्स बनेंगे, और गणपति को लेकर के बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट और ऑडिटोरियम बनने वाला है. दैट्स फैंटास्टिक, ग्रेट न्यूज़ बाय द वे. And I'm very glad to say ये that a friend of mine, that a very dear friend of mine, मैंने तो आपको पहले बता दिया 500 करोड़, हम बहुत खुश हैं उसके लिए. I'm very आप happy, क्या चाहते हैं, सर? sir. I'm very happy that a friend of mine is doing the makeover. The makeover is being done by Rimpesh Sharma, very dear friend of ours, जिन्होंने वृंदावन का सबसे ऊंचा मंदिर बनाया है, वही इस पर काम कर रहे हैं. ये भी बता दूंगा आपको. फिलहाल थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच. गणपति आने वाले हैं, आप सब लोगों को. आखिर भारत के अस्मिता को हम भी सम्मान करने वाले हैं, ये कांग्रेस वाले थोड़े करने वाले हैं. सर ये मत बोलिए. हमारा काम ये सर है. ऐसा नहीं बोलिए, ऐसा मत सर, ऐसा मत बोलिए. सब साहब लोग ये साथ- सही बात है. नहीं सर, साहब ये बात सही है, नहीं ये ऐसा बात सही है. सर, आज देश गाँव की में ऐसा इन्होंने जो माहौल बना के रखा है. सर, ऐसा मेहनती किसानों को गाली दी है, माफी मांगी है. अरे अरे आप छोड़ो, आप बात मत करो. छोड़ो क्या? आपका सर, किसान ओम श्री गणेशाय नमः. किसान आप- चलिए, थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच. लक्ष्मण सौजी साहब, हर हर महादेव, थैंक यू. नमस्कार, नमस्कार. आसिफ फारूकी साहब, जय हिंद, जय हिंद, जय हम हिंद, मुस्लिम थैंक यू वेरी बहनों को मच. न्याय करेंगे. सर आप दोनों ऑफिस में आइए, हमारे साथ चाय समोसा खाइए. चलिए, थैंक यू सो मच जेंटलमैन. नमस्कार. नमस्कार. लेकिन हिंदू मुस्लिम बहना एक करो, कभी तो कभी ना कभी नमस्कार. जिंदगी में. नमस्कार सर, नमस्कार. किसान का भी साथ देंगे. सर, मैं एक हिंदू बहन पहले लेके आऊंगा, हिंदू इनको बहनों कहिए के लिए न्याय मुसलमान करो. बहन ले- पहले हिंदू बहन को बहन मानो तो फारूकी Okay. साहब. थैंक यू जेंटलमैन, ये थैंक यू अच्छा। वेरी मच. दिस विल कंटिन्यू. आसिफ फारूकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. लक्ष्मण सौजी साहब, हर हर महादेव, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच. But really speaking, this new Siddhivinayak corridor, I'm really excited about it. एकनाथ शिंदे जी I feel so happy about it. जहाँ वो But how is he going to do it? I mean, He's always because, been maintaining that. because I tell you what, in that entire Dadar area, It's a huge work. If displacement of all adjoining buildings, and there's no. no, he's not going to displace anybody. No, They're going to say they already have enough space all around. That's what they say. So I don't know how they're going We'll to have do to it. find but out the microscope where. I it is. have received a design over here from Rimpesh, and it's absolutely fantastic. Maybe we'll talk about it tomorrow. I've just received it, so. But it's great news, fantastic news. We need to take a satellite imagery. Where is the space there? Because He's shown it. He's shown yes, it. Yes. Om Gan Gam Ganapatiye Vigna Vinashine Namaha. Om Shri Ganeshaya Namaha. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha. Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakareshu Sarvada. Lambhodara, Lambhodara, Lambhodara. Fantastic. So great discussion. The only thing was it got kind of lost in a few things. Both parties have a lot to be proud of. I think perhaps they should talk about that. And I agree with a lot of people who said that perhaps it is not Kangana Ranaut's fault. Perhaps she should have been briefed on how she's supposed to behave after she comes into parliament. But was she ever briefed? Because she has been No. making extempo statements all the time. Yes, but after becoming a member of parliament, somebody in the BJP leadership should have taken her under his or her wing and should have told her, hey, listen, you can't say this and you can say this. This is the way to behave. She even gave an interview today and where she accepted that I am in an organization and I have to go by that particular routine and rituals of an organization. And in spite of that, she said that Rahul Gandhi should undergo a drug test. Probably. So she's been probably given a free hand. Where to say what? And probably he's been told to her. That's right. I don't think after this agreement she would have come and. But let me assure you one thing, Pradeep ji. She has cost the BJP the Haryana election. हरियाणा का चुनाव गया. मैं अभी बोल रहा हूँ सर, हरियाणा का चुनाव गया. 90 सीटें हैं. BJP is gone. There is already the anti-incumbency factor. Even last time they were able to just cobble together a majority because of Chautala Sahab and others. This time it's going to be very difficult. This time it's going to be impossible for the BJP to win Haryana. हरियाणा के जितने भी किसान हैं, बाकी जितने भी जाट हैं, बाकी जितने भी गुज्जर हैं, वो सब खिलाफ हो गए सब. आप जो मर्जी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए. सर ऐसा है, एक बार अंडा टूट गया, उसके अंदर उसका मसाला जो है वापस नहीं बनता. Humpty Dumpty can't be put together again. That's what has happened to the BJP. But that's one way of seeing it. The other way of seeing is that probably she's been provoked into say that. I mean, for what? Whatever reason. I don't know. I mean, this is not helping anybody. To say that the farmers were responsible for murders and rapes, I mean, come on.
This is Because absolutely the crazy. follow-up of what happened when in the airport she was roughed up, and in spite of that, if she's chosen this occasion to say something like that. I think whatever the BJP is doing right now is not working the way it used to. At one time, whatever the BJP used to do or say used to really work in their favor, irrespective of anything else. As Salim Khan Saab used to say, Salim Khan of Salim Javed, कि एक ज़माना था वाहियात से वाहियात डायलॉग भी लिखते थे, लोगों को इतना पसंद आता था कि हिट हो जाता था। और उसके बाद एक समय आया, अच्छे से अच्छा डायलॉग भी लिखो, कुछ भी लिखो, किसी को पसंद नहीं आता था, बोलते थे क्या बोर कर रहा है आदमी यार। ये होता है। The good thing that he's, what I picked up from him was that when your days are good, the ball falls when you swing the bat. Yes. and when you are not doing good, even with the best batsman, the ball will always miss your bat and knock your stumps. And knock your stumps out. Yes, yes. And that's what is happening to the BJP. And this is really the biggest self-goal of the BJP, I think. I mean, come on. You got to be kidding me. And people are comparing her to Smriti Irani. You got to be kidding me. Smriti Irani. I think both are bad. Both are awful. I mean, both are yes, awful. but Smriti Irani even would never when you do hear something like Smriti this. Irani speaking now, Listen, I can't say anything about Smriti Irani. I gave her a first break. And she still calls me sir, and I'm very, very fond of her. So don't say anything about her. She went haywire and went over the top with regard to Rahul Gandhi. I wish she hadn't. Very frankly. Even when the RSS talked about the arrogance that has seeped into the government, everybody was referring to her. Because that arrogance could be seen on the face. Arrogance could be seen in every interview, in every talk she had with the media. I am very fond of her. So, let's be very, very clear. probably- I have great respect for her. But all the same, all I'm saying is the BJP is a descendant of the Bharatiya Janata Sangh, namely from the RSS. And there are a couple of things that you associate with the RSS. RSS में सबसे पहली चीज़ होती है, there has to be humility. घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए. देश सेवा सबसे बड़ी सेवा है. एंड पार्टी, देश सबसे ऊपर, उसके बाद पार्टी, उसके बाद आपकी संस्था, उसके बाद आप. सबसे बड़ी बात यह है. और आज की तारीख में अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखें प्रदीप जी, एक तो वहाँ पे बीजेपी के खालिस लोग दिखते नहीं हैं ज़्यादातर कांग्रेस से आए हुए, इधर से आए हुए, उधर से आए हुए लोग दिखते हैं. तो बीजेपी के खालिस लोग कौन हैं, मतलब ज़रा ढूंढने में मुश्किल होती है. लेकिन फिर भी जो अहंकार आ गया है, घमंड आ गया है, वो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी विचारधारा है, उससे मेल नहीं खाता है. दैट्स व्हाट आई थिंक. प्रदीप जी. Now there's various ways of thinking this. I mean, BJP is having its own think tank, their own entire study. They have 24/7, 365 days, groups managing things to a precision. So whatever they do is working to a plan. And So as long as it in succeeds, spite of that plan, now, Pradeep ji, if we see the only thing that moves, and you will see, is Prime Minister Modi. लेकिन Two प्रदीप terms, जी, the third term on, in spite and of that if plan, once he finishes 12 years, he will overcome one lap where we had Hitler ruled for 12 years. Modi ji will complete that, and when he completes 14 years, he will finish what Jawaharlal Nehru's yardstick. if was he there. lasts 14 years, Yes, and then if he goes for more than 15, then we have to find out new generals, new great leaders all across the world who have the same kind of aura and the same kind of temperament, and whom is. But right now, everything seems to be working fine. I mean, it's Modi all the way, Modi in Ukraine, Modi in Russia, Modi talking to somebody else. He's still the star all across the globe. Yes, sir. but the only thing is that in spite of all the think tanks and in spite of everything else, they had to withdraw their Jammu and Kashmir list and issue a new one because of the protests small, on the ground. That's small. आगे पीछे. It's an indication, sir. Every international conference मारपीट चल रहा है. In every party मारपीट चल रहा है. लेकिन जिस Election पार्टी times में प्रदीप जी मारपीट चल रही होती है टिकटों के लिए, टिकट्स के लिए, which is a very good sign. बहुत बढ़िया साइन होता है सर. इसका मतलब जीतने की उम्मीद है. अगर भारतीय जनता पार्टी में मारपीट चल रही है टिकट के लिए, इसका मतलब जम्मू में जीतने की उम्मीद है सर. नहीं तो कोई आता नहीं है वहां पे. जैसे आज की तारीख में ये लाड़की बहन स्कीम के पहले भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा था प्रदीप जी. अब ये लाड़की बहन स्कीम के बाद वहां पे फिर दोबारा भीड़ लगनी शुरू हो I गई है. really doubt whether, in spite of Ladki Bahin scheme, honestly, if you ask me, I don't think BJP is scoring anywhere or MVA is scoring anywhere. I don't think. Eknath Shinde will be the greatest benefactor, beneficiary. He will do great things for himself, but I don't think Ajit Pawar and Devendra Fadnavis is going to go anywhere.
further. I than think God. Ajit Dada Pawar is going back to NCP. That is the only face saving for him. I actually. think he If should he go wants back. To, if he wants to save his political career, he has to go back there. Gee. There's no other way. Right, another moment with us from the RJD. We